click that record. Okay, thank you. इसके बाद का प्रोसेस छोटा सा ही है, मैं आपको बता दूंगा लेक्चर के बाद. So bookkeeping and accountancy, what are these important terms? अभी अभी हमने बताया, हमने देखा, हमने क्या देखा कि बुक कीपिंग का मतलब क्या है. बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, which brings us to the concept of business. ये भी मैंने थोड़ा briefly डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. You can make money by doing different things in life. You can join an employment जहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी. You can go for a profession, वहाँ पे आप expertise, knowledge share करके fees लोगे. And you can start your own business. You can start your own business. Okay, now let's focus on business. How to start a business? Okay, how to start a business and what all things are there in a business and what all types of businesses are there. पहले तो बिजनेस का मतलब समझ में आ गया. इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय एन ओनर. आप ओनर हो उसके. ओके, अभी यहाँ पे सबको बिजनेसमैन के जैसा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बुक कीपिंग में क्या करेंगे, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे. तो बिजनेस होता क्या है? बिजनेस इज बेसिकली एनी एक्टिविटी टेकन अप बाय एन ओनर. ओके, where he will engage more people working under him. Okay, he will employ his capital money into the business. He will engage more people and he'll start the same line of activity at different places, not only at one single place. He'll start it at the same activity. He'll start it at different places on a larger scale. Like we took an example of Cream Center restaurant, we took an example of Facebook, took an example of WhatsApp, took an example of Rajdhani Thali. Okay, these are all business organizations. Reliance Industries, these are all the same organization doing the same activity but spread over a large area. Okay? That's what is business. अब बिजनेस कौन से टाइप के होते हैं? बिजनेस कौन से टाइप के होते हैं? बिजनेस में करते क्या है लोग? कैन यू डिफाइन, मतलब कैन यू एक्सप्लेन मी इन सिंपल वर्ड्स कि बिजनेस में एक्टिविटीज क्या कर सकते हो आप? व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू कैन स्टार्ट? There are so many businesses around you. You can take examples from any of them. Supermarket, very good example. Supermarket. Sir, Electronics. Clothing. Very good. Furniture. Durian. Very good. Restaurant business. Very good. Okay, so these are all different types of businesses you can start, right? यही बिजनेस को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, यू कैन डिवाइड द बिजनेसेस इनटू ब्रॉडली 3 टाइप्स. ये सभी बिजनेसेस को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. व्हाट आर दोस 3 टाइप्स? एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. ओके, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्रोडक्शन का बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग. दूसरा होता है ट्रेडिंग का बिजनेस, ट्रेडिंग. और तीसरा होता है सर्विसेज का बिजनेस. ओके, अभी आपको नाम देख के मोटा मोटी थोड़ा आइडिया आ चुका होगा. प्रोडक्शन का बिजनेस मतलब क्या कर रहा है वो बिजनेस. मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है मतलब क्या कर रहा है वो. They make goods. They make something out of the raw materials and then they sell it, right? Say for example, Apple takes the raw materials from different parts of the world. Okay, chips लेके आता है, batteries लेके आता है, SIM card slots लेके आता है, body लेके आता है, screen guards, whatever it gets from the different parts of the world, and then assembles them and then manufactures a phone, manufactures an iPad, manufactures earbuds. Okay, तो क्या बोलते हैं उसको, जो बिना वायर वाले, okay, earbuds. Okay, और उसको सेल करता है मार्केट में, राइट? सो एप्पल इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? अनदर एग्जांपल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस you might be knowing. Anyone? Sorry, Tesla. Yes, very good example. Tesla क्या करता है? What does Tesla do?
cars. मैन्युफैक्चर्स कार्स, ओके, मैन्युफैक्चर्स कार्स बेसिकली. और भी उसके वो एविएशन वाली भी कंपनी है, ओके, दे मैन्युफैक्चर रॉकेट्स एंड ऑल. स्पेसएक्स नाम है उसका. दे मैन्युफैक्चर रॉकेट्स, ओके, सैटेलाइट लॉन्चर्स एंड ऑल. सो एप्पल, टेस्ला, दीज आर मैन्युफैक्चरिंग. इंडिया में बहुत सारी हैं, ओके. महिंद्रा एंड महिंद्रा, दे मैन्युफैक्चर कार्स, राइट. बोलेरो, सुमो, टाटा सुमो है, सॉरी, महिंद्रा की बोलेरो है. Cars, Tata is an example. Tata Motors manufactures cars, right? Tata Steel manufactures steel, right? What else? What else? Samsung. Samsung, very good example. What do they do? Manufacture again mobile phones, electronics. Yes. What else? Ultratech Cement का नाम सुना है? Ambuja, Ultratech Cement, okay? ACC Cement. What do they do? Manufacture. They manufacture cement. So all these businesses are engaged in what? They take some raw materials. जैसे Tata Steel, it takes iron ore. You might have learned in school, iron ore से iron steel बनता है, manganese ore से manganese बनता है, बराबर है, bauxite से aluminium बनता है. So they purchase the raw materials and they process it in the factory, they process it in the machine, in the plant, and they manufacture finished goods. वो finished goods बेच देते हैं. So they are into the business of production. They are into the business of manufacturing. Hope this part is clear. Raw material खरीदेगा. पेपर कंपनीज होते हैं, पेपर कंपनीज आपने सुना होगा. क्लासमेट, आप नोटबुक यूज करते हो आईटीसी का, ओके, क्लासमेट, ओके, दैट्स अ पेपर कंपनी. वो पल्प लेके आता है, पेपर बनाता है, पेपर सेल करता है. स्पेयर पार्ट्स लेके आते हैं, गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी सेल करते हैं. रॉ मटेरियल लेके आके आयरन स्टील बनाते हैं, स्टील सेल करते हैं. तो दीज आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. दे आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. इज दैट क्लियर? वैसे ये जरूरी नहीं कि बड़े लेवल पे हो, छोटे लेवल पे भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं. स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स आल्सो. यू माइट हैव सीन स्मॉल कारखानास ऑफ क्लॉथ, ओके, मिल्स होते हैं, क्लॉथ मिल होते हैं, टेक्सटाइल मिल्स होते हैं, आयरन एंड स्टील के छोटे छोटे कारखाने होते हैं. सब लोग वही करते हैं. Parle G also. Huh? पार्ले जी ऑल्सो, वेरी गुड एग्जाम्पल. बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है, वेरी गुड एग्जाम्पल, परफेक्ट. ओके, विले पार्ले से ट्रेन जाएगी, अभी एनएम में जाओगे तो स्मेल आएगी पार्ले जी बिस्किट्स की. ओके, so every time the train passes you will understand that Parle G factory is there. So Parle G is also a good example, manufacturing businesses. All of you clear with that sorted business? Okay, manufacturing. दूसरा होता है trading business. दूसरा होता है trading business. As the name suggests, are they manufacturing? No. They are traders. They are traders मतलब क्या? They are buying and they are selling. They are not manufacturing. They are buying from someone, mostly the manufacturers, and they are selling it to the customers. Okay, so that's called as a trading business. Can you give me an example of trading business? Amazon. Sorry, Amazon, apt example of a trading business. Very good, very good. What else? DMart. DMart, very good example, very good example. You know these Amazon, Flipkart, DMart, all do they, what do they do? They don't produce anything. They buy it. Zomato. जोमैटो बोल सकते हैं, रादर इट इज अ सर्विस बिजनेस. जोमैटो क्या करता है, आपको खरीद के नहीं बेचता है, वो क्या करता है, आपको सर्विस प्रोवाइड. Amazon ऑल्सो इन सम वर्ड इट इज सर्विस प्रोवाइडर. Amazon फिर भी क्या करता है, कस्टमर उधर बायर से खरीदता है और आपको थोड़ा सेल करता है, बीच में मार्जिन वार्जिन दे टेक. जोमैटो वाला भी बोल सकते हो ट्रेडर्स, बट मोर ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, डिलीवरी सर्विस. व्हाट एल्स? आपके आजू बाजू जितने शॉप्स दिख रहे हैं ना, जितने शॉप्स दिख रहे हैं लोकेलिटी में, Stationery shop. all are what are they? Traders. All are traders. Whatever shops you find, furniture shop, क्या वो बना कर है वहां पे फर्नीचर? वो is buys from someone and ready-made furniture is selling, right? बाद में आपका कर्टन्स, कुशंस, ओके, टेबल क्लॉथ, इसका शॉप्स होता है आपके आजू बाजू. कटलरी का शॉप होता है, क्रॉकरी का शॉप होता है, फूड ग्रेन का डिपार्टमेंट, जनरल स्टोर होता है, मेडिकल शॉप्स होता है. ऑल दीज आर व्हाट? Traders. फर्नीचर ट्रेडर, आपका कन्फेक्शनरी, आपका कॉस्मेटिक्स, ओके, आपका स्टेशनरी, ये सब क्या है आपके आजू बाजू जो भी शॉप दिख रहे हैं, दे आर ऑल
traders, they are all dealers, right? दोनों में फर्क समझ में आया आपको मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में? All of you, is this part clear? First two items, Yes. comfortable? All of you, Tanisha, So, Tisha, yeah. so can we consider Netflix also in a trading business? Netflix, yes, it is a trading business plus service business. जो OTT की सर्विस है वो तो प्रोवाइड करता ही है, प्लस वो आपकी मूवीज जो होते हैं वो परचेज करता है, प्रोग्राम्स के राइट्स परचेज करता है और आपको टेलीकास्ट करने में आपको प्रोवाइड करता है वो, बराबर है, एब्सोल्युटली। Sir, it means Sir, in then mall. in that, बोलो। Sir, in mall also some company. मॉल का Yes. सब स्टोर्स, ऑल द Yes. स्टोर्स ऑफ मॉल, ऑल आर ट्रेडर्स, ऑल सूटकेस का दुकान, कपड़ों की दुकान, ओके, गहनों की दुकान, ज्वेलरी शॉप्स, ओके, ऑल दीज आर, बच्चों के खिलौनों की दुकान, एवरीथिंग इज अ ट्रेडिंग बिजनेस, everything is a trading business where you do not manufacture anything from raw material. That means you are trading, you are buying and you are selling. Yes, Heath? The company is Zerodha. Zerodha. Yeah, so it's trading or Zerodha services? comes under service. Zerodha comes Okay, under sir. service. I'll explain, come to that service part also. Lokik, yeah, as you said, like I feel Netflix should be a service platform because in Yes. every step there is trading. So in manufacturing also there is trading because Apple also sells and it sells its the copyrights, and so everything should be trading, right? But Netflix should come in services part. Netflix is services, but it, देखो service मतलब क्या? You are not buying and selling any tangible goods. When you are providing any intangible good, that means you are providing service. I'll come to that. Okay. So services का पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको ट्रेडिंग और सर्विस का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. Yes, Rivan? Sir, will import and export be considered as trading? Yes, import and export are trading. Yes, you chemicals आप export करते हो, toiletries आप export करते हो, confectionaries export करते हो, ठीक है, ज्वेलरी खरीद रहे हो, import कर रहे हो, trading, absolutely right. Now, what do you mean by service business? There are many businesses engaged in services also, only services, no DHL. trading. They are not buying. Courier companies. Sorry? JP DHL. Morgan. Courier company. JP Morgan, very good example. JP Morgan, what does JP Morgan do? Financial banking and Merchant investment. bank and investment bank. Banking. So that brings us to the banking and financial services. आप कोई बैंक में जाते हो, does the bank sell you anything? It provides you the service. क्या service? आपका पैसा स्टोर करती है, आपका चेक क्लियर करती है, आपको फैसिलिटी देती है कि आप उसके थ्रू ट्रांजैक्शन कर सको, बराबर है? तो जैसे बैंकिंग हो गया, जेपी मॉर्गन इज एन एग्जांपल. वैसे ही all the banks they are engaged in which business? Service business. They just provide service. They keep your money safe, they give you some interest on that, okay, they provide you loans. That's all a service. They are not buying or selling any goods or commodity, okay, they are providing you service to keep your money safe, to keep your check facility, ATM facility, debit card facility, credit card facility, online banking facility. All these are services, all these are services. तो सर्विसेज का मतलब क्या है? बेसिकली सर्विसेज का मतलब होता है जब आप कुछ टैंजिबल गुड, टैंजिबल मतलब जो टच वच कर सकते हो ना, आप देख सकते हो, ऐसे गुड्स में डील नहीं कर रहे हो, इंटैंजिबल आइटम की सर्विस दे रहे हो, intangible item which you cannot see and touch. That's why I told you Netflix is more of a service. You cannot see anything, so that's a service. Amazon also, you cannot see anything, that's an online service business. आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम करके दे रहा है. So they form mostly under service. वो ट्रेडिंग भी है, बाय सेल भी करता है Amazon, but majority service business. और क्या एग्जांपल दे सकते हो आप सर्विस बिजनेस के? बैंकिंग हो गया, FedEx. KPMG. FedEx, very good. FedEx, what does FedEx do? Courier company. Courier Courier service. company. कंपनी, कुरियर सर्विस, FedEx कुरियर सर्विस देता है. और DHL. DHL भी कुरियर हो गया. अभी और कुछ कुरियर, KPMG. KPMG, वेरी गुड एग्जांपल. KPMG क्या है? व्हाट इज KPMG? It's a tax firm. इट्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म. इट्स अ चार्टर्ड, Yes. बिग फोर में आता है. ओके, डेलॉयट, KPMG, PwC,
ऑल दीज कम इन बिग फोर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने हैं वहां पे जाके आप काम कर सकते हो। वो दैट ब्रिंग्स अस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज। व्हाट डज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डू? डज ही बाय और सेल एनीथिंग? आपको कंसल्टेंसी देता है, आपको बोलता है कि टैक्स कैसे बचाने का, आपको बोलता है अकाउंट्स कैसे बनाने का, ओके आपको बोलता है जीएसटी का रिटर्न्स कैसे फाइल करने का, इनकम टैक्स रिटर्न्स कैसे फाइल करने का, उसमें आपको असिस्ट करता है। आपके पैसों को कैसे मैनेज करना है, ये सब आपको सिखाता है। सर्विस बिजनेस, एब्सोल्युटली राइट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और Sir, urban clap. ओके किसी का तो मुझे दिखा अभी 2 लॉयर का फोटो, वो सूट्स वाला किसी ने लगा के रखा है, थी निनाद। ओके सो सूट्स में देखा होगा आपने लॉयर्स। ओके व्हाट डू लॉयर्स डू? So they fight the case for you. They fight cases for you. Okay, that's again a Provide service. legal सर advice. ट्रांसपोर्टेशन आएगा. Transportation is a service 100% through Ola, Uber, okay, goods carriers, all these transport services. They don't buy, sell anything. They What just about transfer restaurant the goods from one businesses? side. Any trading Sir, what about urban clap? What about urban clap? 110%. What is it? provide services Service. like repairing and servicing. All different types of services. Urban clap. Trading platform. Trading platform. Zerodha someone said. Zerodha है. Yeah. फिर आपका ग्रो Small ऐप case. है. Okay. Upstocks आता है. Sorry. Small case. Small case is a facility provided by different brokers to invest. ये उसका one of the facility है. Basically जो broker के business का नाम क्या है? Zerodha, Upstocks, Angel Broking, शेर खान सुना होगा आपने ये सब. शेर खान, Angel Broking, Zerodha, Upstocks, Grow, इंटरनेट पे ऐड आती रहती हैं. All these are brokers. So brokers, stock market में जो brokers होते हैं, they are also engaged in which business? सर्विस बिजनेस. ओके और क्या आता है सर्विस में इस लिस्ट का? Airlines. एयरलाइंस, GoDaddy. godaddy.com, डोमेन प्रोवाइडर, सर्विस बिजनेस. वेरी गुड. TCS. एयरलाइंस, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आईटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके तो टीसीएस आईटी सर्विस देते हो आप. ट्रांसपोर्ट की सर्विस, एयरलाइंस होते हैं ये ट्रांसपोर्ट की एयरलाइन सर्विसेज देते सर हैं. आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट. आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट भी, उसमें ट्रेडिंग सर्विस दोनों आ जाता है, क्योंकि आप जैसे नेटफ्लिक्स पिक्चर बाय सेल भी कर सकते हो, और आप खाली सर्विस दे रहे हो, एंटरटेनमेंट की सर्विस दे रहे हो, मतलब आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हो, उसकी सर्विस दे रहे हो. दैट्स ऑल अ सर्विस बिजनेस. वेरी ट्रू. Byju's. Byju's is a service. Teaching is a service business. Teaching is a service business. Intangible. Very good. Perfect. Yes, Shubh. So can Jio and Reliance come in service? Jio is also service. Jio is also service. Okay. खाली वो सिम कार्ड का थोड़ा ट्रेडिंग में आ जाता है पार्ट, जो आपको बेचता है. उसके बाद तो पूरा सर्विस ही है. जो पहला राउटर का पैसा देते हो वो ट्रेड होता है, खाली वो परचेज सेल है. उसके अलावा सब जो आपको डेटा प्रोवाइड करना है, मंथली आपका सब्सक्रिप्शन लेता है, जो प्रीपेड पोस्टपेड रिचार्ज. टेलीकॉम इज एंटायरली सर्विस. टेलीकॉम पूरा सर्विस में. यस मनन शाह. Sir, what about OLX? OLX is also a service business. OLX is also a service business. OLX क्या है? ब्रोकर है, मिडिल मैन है, मीटिंग बायर एंड सेलर. That's a service. Yes. Okay. बराबर. So all of you know now the meaning of all the three types of business. Manufacturing क्या होता है, trading क्या होता है, और service business क्या होते हैं. अभी सभी तरह के businesses में transactions तो होने वाले हैं. तो हमारा काम क्या है in bookkeeping? To record those transactions. To record those transactions in all the types of businesses, right? So in this year, in 11th standard, हम लोग कौन से business के transactions record करने वाले हैं? Okay? Are we going to record manufacturing business का transactions? Are we going to record trading business का transactions? Or are we going to record service business का transactions? So the answer is we are going to record trading business का transaction. Okay? We are going to record trading business का transaction. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को अच्छे से समझ लोगे और उनको रिकॉर्ड करना सीख लोगे, तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आ ही जाएगा आपको. बहुत इजी है. ट्रेडिंग
का ही थोड़ा एक्सटेंशन है मैन्युफैक्चरिंग। और ट्रेडिंग आ गया तो सर्विस तो और भी इजी है, 2 मिनट में आप सर्विस बिजनेस के ट्रांजैक्शन सीखिए। सो ट्रेडिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो आपने अच्छे से ग्रास्प कर लिए, समझ में ले लिए कैसे रिकॉर्ड करना है, ओके, तो आप अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग भी कर लोगे और सर्विस भी अपने आप आ जाएगा। उसमें थोड़ा थोड़ा ही नया पार्ट। Got that, all of you? So that's why in 11th standard fully we'll be learning transactions and recording part of what type of business? A trading business. And that too, we won't be entirely traders. We will be trader कम manufacturer. अब ये क्या होता है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेडर कम मैन्युफैक्चरर मतलब नॉट प्योरली ट्रेडर के बस खरीदा और बेच दिया। We will buy, we will do some processing so that some manufacturing element is also included, and then we will sell. Not entirely proper manufacture के रॉ मटेरियल खरीद के मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप क्लॉथ खरीद रहे हो, डाई कर रहे हो, टैन कर रहे हो, बेच रहे हो। ओके, जैसे कि आप मोबाइल फोन कर रहे हो, खरीद रहे हो, उसको थोड़ा कस्टमाइज कर रहे हो, उसको थोड़ा एप्स इंस्टॉल कर रहे हो और उसको आगे बेच रहे हो। जैसे कि आप समझो स्टील प्लेट्स खरीद रहे हो, उसको मोल्ड कर रहे हो, उसको शीट्स या वेसल्स में कन्वर्ट कर रहे हो और आप बेच रहे हो। सो वी आर सेमी मैन्युफैक्चर, नॉट एंटायरली ट्रेडर, सेमी मैन्युफैक्चर। ओके, ये आपको एग्जांपल के साथ समझ में आ जाएगा। सो दैट्स व्हाट इज द बिजनेस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस ईयर एंड वी आर गोइंग टू लर्न द ट्रांजैक्शन। ठीक है, नाउ यहां तक किसी को कोई डाउट्स, क्वेरीज यू वांट टू आस्क? सॉर्टेड। अब ये जो बिजनेस होता है ना, चलो ट्रेडिंग बिजनेस पे तो आ गए। अब ये बिजनेस शुरू करना है, स्टार्ट करना है, तो कितने लोग चाहिए आपको शुरुआत करने के लिए? कितने ओनर्स चाहिए आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है कि 2 लोग होने चाहिए, 5 लोग होने चाहिए, एक बंदा होना चाहिए? ऐसा कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट एनी बिजनेस? व्हाट डू यू थिंक? No, there is no requirement. There is no requirement. Even a one single person can start a business, right? एक बंदा जब बिजनेस खुद ओन करता है, खुद मैनेज करता है, तो उसको कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। उसको क्या कहा जाता है? सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। What is a sole proprietary business? Single person is the owner, manager, karta dharta, mai baap of the business. Everything is done by one single person. All meetings, all the decisions, everything are taken by one single individual. सब प्रॉफिट उसी को जाएंगे, सब लॉस, सब रिस्क वही खुद बेयर करेगा। दैट्स कॉल्ड एज अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। फिर आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो एक जन की तो लिमिट हो जाती है ना, कितना संभालेगा, तो फिर आप पार्टनर्स लेके आते हो। तो दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस होता है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप का नाम सुना है? पार्टनरशिप बिजनेस। व्हाट इज अ पार्टनरशिप बिजनेस? Where 2 or more. Multiple owners come together. मल्टीपल ओनर्स, 2 और मोर देन 2, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। ओके, अपना गवर्नमेंट बोलता है, एक्ट में दिया हुआ है, लॉ में 2 से 50 लोगों की आप पार्टनरशिप बना सकते हो। तो ये सब आपको जो दिखते हैं ना स्टोर्स, जो बेसिकली आपके लोकेलिटी में जो भी स्टोर्स दिखते हैं ना, दे आर ऑल सोल प्रोप्राइटर। जनरली एक ही ओनर के होते हैं, सिंगल ओनर बिजनेस। तो जनरली स्मॉल बिजनेसेस आर ओन्ड बाय वन सिंगल पर्सन। फिर पार्टनरशिप मतलब थोड़ा बड़ा, जितने सीए फर्म्स आपको दिखते हैं, जितने लॉयर के फर्म्स आपको दिखते हैं, जितने स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स आपको दिखते हैं, जनरली दे आर पार्टनरशिप फर्म्स। Sir, IPL teams can also come as a partnership team. IPL is the company, they are companies। कंपनी में मैं आता हूँ। थोड़ा सोल से आप पार्टनरशिप पे जाओगे ना, मतलब थोड़ा बड़ा होगा बिजनेस, 2, 5, 10 ओनर्स हो जाएंगे उसमें। आपको डिफरेंस समझ में आया? जो आपके एरिया लोकेलिटी के जो बिजनेस है ना, पेंट का बिजनेस है, कोई ट्रेडर है, फर्नीचर डीलर है, कोई ग्रेन स्टोर का डीलर है, ये सब जनरली सिंगल ओनर बिजनेस है, छोटे छोटे बिजनेस। फिर थोड़े बड़े बिजनेसेस, सीए फर्म्स, लॉयर फर्म्स आपके होते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स होते हैं, ये सब पार्टनरशिप फर्म्स में जाते हैं। उससे भी बड़ा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या होता है? प्राइवेट। ये सब एक्टिविटी यही कर रहे हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग, या तो ट्रेडिंग, या तो सर्विस।
लेकिन खाली साइज बड़ी होती जा रही है। क्या हो रहा है? खाली साइज बड़ी होती जा रही है। जब छोटे साइज पे सिंगल ओनर तो इट्स कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर। डिड यू ऑल गेट दिस? थोड़ा बड़ा साइज हो गया तो इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। उससे बड़ा साइज हो गया तो उसको कहा जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये सब आपका एक सब्जेक्ट है ओसी करके, ये साल ही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। इसमें आप सब फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में पढ़ोगे। और सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट डे वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डूइंग द बिजनेस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसको हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी या नॉर्मल कंपनी, जैसे कि रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, कोटक महिंद्रा हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई। ओके, ऑल दीज आर कंपनी। कंपनी गेस्ट फॉर्म, एप्पल हो गया, आईबीएम हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, सैमसंग हो गया। ओके, ये सब कंपनीज। आईपीएल के जो ओनर्स है ना, ये सब कंपनीज है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट लिमिटेड देखा होगा आपने नाम, लिमिटेड। ओके, तो सम आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सम आर पब्लिक। दिस रेड चिलीज इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। शाहरुख खान एंड जूही चावला एंड फ्यू ऑफ देम ओन देम। ओके, तो थोड़ा कंपनी ही है वो भी, थोड़ी कम लोग होते हैं तो प्राइवेट, और पब्लिक में आप पैसा रेस कर देते हो, दैट इज पब्लिक लिमिटेड। ये सब हम डिटेल में सीखेंगे, आपको 11th-12th स्टैंडर्ड में सब डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स आएंगे। यहाँ पर बेसिकली आपको इतना समझना है कि छोटे से बड़ा हो रहा है बिजनेस। सबसे छोटा बिजनेस इज सोल प्रोप्राइटर, उससे बड़ा पार्टनरशिप, उससे बड़ा प्राइवेट लिमिटेड, उससे बड़ा सबसे बड़ा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सब बड़े बड़े कंपनीज आ जाते हैं। तो आईपीएल के जितने ओनर से एक दो प्राइवेट लिमिटेड है, बाकी सब पब्लिक लिमिटेड है। जैसे कि वो अल्ट्राटेक्स अपना इंडिया सीमेंट वाला चेन्नई सुपर किंग्स वगैरह ओन करता है। इंडिया सीमेंट्स इज अ पब्लिक लिमिटेड बिजनेस, पब्लिक लिमिटेड ट्रेडिंग, पब्लिक लिमिटेड सीमेंट कंपनी। So mostly they are company. Mostly they are company. Okay. Yes, Riva. Sir, if a particular person has a hotel business and has franchisee, so will it still be considered as sole proprietor or will it be considered No, as company. Company it is. Say ITC hotel. ITC is a company. Okay. ITC hotel is a company business. Okay. ITC is the parent company. ITC के बहुत सारे सब्सिडरी बिजनेस है। ओके, जैसे कि सिगरेट बनाता है, फिर आपका ये सब बनाता है, क्लासमेट नोटबुक्स ये सब बनाता है। फिर आप ये बिस्किट्स खाते हो ना, वो कौन सा वाला अपना सनफीस्ट। सनफीस्ट इज अ ब्रांड ऑफ आईटीसी, वो भी आईटीसी का है। फिर होटल बिजनेस आईटीसी ग्रैंड मराठा शेरेटन परेल में है। ओके, इधर भी अपना एयरपोर्ट साइड पे। सो ये सब होटल का, ये सब उसका सब्सिडरीज है। बट ओनर कौन है? कंपनी। कंपनी का सिंगल ओनरशिप है, लार्जेस्ट organization, company is the owner of all these business, of all these. Okay, so again coming back to our syllabus, in 11th standard मैंने आपको अभी अभी बताया, पहले तो कौन से बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं? सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के करने वाले, बराबर है? ट्रेडिंग के करने वाले, ट्रेडिंग कम सेमी मैन्युफैक्चरिंग। एंड नंबर 2, हम लोग कौन सा लेवल ऑफ बिजनेस पे काम करेंगे इन 11th स्टैंडर्ड? सोल प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड? व्हाट शुड बी योर कॉमन सेंस आंसर? Sole proprietary. 11th स्टैंडर्ड यू विल बी लर्निंग सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, सबसे छोटा। वापस अगर आपको सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस के अकाउंट्स आ गए तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। थोड़ा 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 एडिशन ऑफ नॉलेज है वहां। बेसिक कंसेप्ट सबका सेम है, ए बी सी डी इज सेम। फिर आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। इज दैट क्लियर? तो ए बी सी डी बेसिक सबका सेम है। तो सोल प्रोप्राइटरी आपको ये साल लर्न करना है। 12th स्टैंडर्ड में आप पार्टनरशिप लर्न करते हो और थोड़ा कंपनी लर्न करते हो। फिर डिग्री वगैरह में कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा आ जाता है आपके पास, ऐसा है। ओके, तो ये साल पूरा हमारा डेडिकेटेड होगा सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस को एंड ट्रेडिंग बिजनेस को। ट्रेडिंग कम सेमी मैन्युफैक्चरिंग। इज दिस पॉइंट क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? एनी डाउट? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? સમજાય છે કે ઉપરથી બાઉન્સર જાય છે? ઈશાન શર્મા વાળો બાઉન્સર જાય છે કોઈને?
एकदम ऊपर से गया, कुछ नहीं समझा, ऐसा कोई है तो मुंह खोलो. Okay, see others are answering, you can also answer. Okay, whenever I am asking, please talk, please answer, so that I come to know. If you don't talk, only अंदर अंदर रखोगे तो मेरे को मालूम कैसा पड़ेगा तुमको समझा कि नहीं समझा. ठीक है, तो एटलीस्ट मुंडी हिलाओ या फिर या कुछ नहीं समझा तो पूछो. Sir, can you just give me different examples between private limited and public limited company? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में बेसिक फर्क क्या होता है कि जिसका अभी आपको शेयर्स का कंसेप्ट पता नहीं है, मतलब जिसकी ओनरशिप है ना ट्रांसफर नहीं हो सकती है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम, दैट्स अ लिमिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013. तो 200 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं. और अगर मैं ओनर हूं, तुम भी ओनर हो, शुभ भी ओनर है, आदित्य भी ओनर है, मीत भी ओनर है, रायना भी ओनर है, हम सब ओनर्स हैं, हम सब ने पैसा डाला हुआ है कंपनी में. तो प्राइवेट लिमिटेड में रेस्ट्रिक्शन होता है, हम अपना शेयर किसी और को बेच नहीं सकते. अगर हम ओनर है तो हम ही ओनर रहेंगे, हम किसी और को नहीं कर सकते. देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है और उसमें अपर लिमिट कोई होती ही नहीं है. प्राइवेट लिमिटेड में 200 मेंबर ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, 200 ओनर्स हो सकते हैं. पब्लिक लिमिटेड में कितने भी ओनर्स रखो, मिनिमम 2 मैक्सिमम मिनिमम 1 हो गया, अभी 1% कंपनी भी है, मैक्सिमम अनलिमिटेड. तो कितने भी लोग आप रख सकते हो. ओके, तो उसकी लिमिट नहीं है. और फ्रीली यू कैन ट्रांसफर द ओनरशिप, फ्रीली यू कैन ट्रांसफर द ओनरशिप. किसी भी आप एक दूसरे को शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो. तो किसी को भी खरीदना है, बेचना है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स डील होते हैं ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी. दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक. अभी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है, शाहरुख खान ओनर है, जूही चावला ओनर है, शाहरुख खान की वाइफ ओनर है गौरी खान. तो ये लोग अपना शेयर किसी और को बेच नहीं सकते. कल उठ के कोई नया बंदा आया तो शाहरुख खान उसको बेच के भाग नहीं सकता, वही ओनर रहेगा. वैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप एक दूसरे को शेयर्स अपना जो भी ओनरशिप है वो बेच के निकल सकते. That is the advantage. Sir, can we say that public limited are generally MNCs? MNCs and all are mostly public only. MNCs and all are mostly public. जितना एक बार साइज बड़ा हो गया ना, एक लिमिट 2, 5, 10 करोड़ के ऊपर, तो पब्लिक जाना ही पड़ता है, डीम पब्लिक हो ही जाता है. खाली कोई ऑर्गेनाइजेशन पे रेस्ट्रिक्शन है, जैसे सीए फर्म्स, PwC हुआ, डेलॉयट हुआ, ये कंपनी बना ही नहीं सकते, इन पे लॉ का रेस्ट्रिक्शन है. तो ये सब पार्टनरशिप फर्म्स है. इतने बड़े बड़े MNC है बट पार्टनरशिप फर्म्स है, ये कंपनी में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते. बाकी जनरली जो इंटरनेशनल लेवल पे दिखते हैं ना, सब 99% कंपनीज ही होते, 99% ऑल आर पब्लिक लिमिटेड. सो लेट्स टेक द फर्स्ट चैप्टर अगेन, इंपॉर्टेंट टर्म्स. ओके, करना क्या है ये साल, रोड मैप क्लियर हुआ सबको. अब ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या बोलता है आपको, इंपॉर्टेंट टर्म्स बोलता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स ये चैप्टर क्या है. आप जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे ना, सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर वाले बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस के इस साल में, तब ये टर्म्स घड़ी घड़ी आने वाले हैं बीच में. तो यू शुड नो प्रॉपरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स. सिंपल. तो ये टर्म घड़ी घड़ी हम यूज करेंगे, तो इसका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, दैट इज कैपिटल. ऑल ऑफ यू गॉट दैट. अब मुझे बताओ, अपने को बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस करना है. ऑल ऑफ यू आर नाउ बिजनेसमैन, ऑल ऑफ यू आर नाउ बिजनेसमैन. ओके, हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे. लेट अस अज्यूम वी आर स्टार्टिंग अ मोबाइल फोन बिजनेस. मोबाइल फोन का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अभी का हॉट बिजनेस है. ओके, मोबाइल फोन की डिमांड बहुत अच्छी है. तो लेट्स स्टार्ट अ मोबाइल फोन का ट्रेडिंग बिजनेस. लेट्स स्टार्ट अ मोबाइल फोन का ट्रेडिंग बिजनेस. सबसे पहली चीज क्या चाहिए टू स्टार्ट दैट बिजनेस? शॉप. शॉप चाहिए. कहाँ से आएगा? Capital. कैपिटल का मतलब क्या? पैसा. Money which you invest in business. एग्जैक्टली. अगर ये पैसा डालेगा कौन? Investors. इन्वेस्टर मिले तो ठीक, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस. इन्वेस्टर्स लेके आए तो आप मल्टीपल ओनर ला रहे हो, जो पैसा डाल रहा है वो ओनर बन जाएगा.
तो सोल Buyer प्रोप्राइटरी or- बिजनेस मतलब एक ही ओनर है, तो हु विल पुट द मनी इन द बिजनेस? The sole proprietor. तो हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के लिए दुकान चाहिए, शॉप चाहिए, वेयर हाउस चाहिए स्टोर करने के लिए, जेठालाल गड़ा, ओके, एक दुकान और एक वेयर हाउस दोनों चाहिए अपने को, यस और नो? तो जेठालाल गड़ा इज एप्ट एग्जांपल ऑफ सोल प्रोप्राइटर, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का डीलर है, बराबर है। पैसा किसने डाला? जेठालाल गड़ा ने डाला। जो पैसा जेठालाल गड़ा ने बिजनेस में डाला टू स्टार्ट बिजनेस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन। अब वहां पे ब्रैकेट में छोटा सा कंसेप्ट लिखा हुआ है, एंटिटी कंसेप्ट, दिख रहा है आपको? अब ये कंसेप्ट्स क्या होते हैं? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये कंसेप्ट्स जो होते हैं, ओके, दीज आर अनसेड रूल्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अनसेड रूल्स मतलब जब से ये सिस्टम डेवलप हुई है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के, आज से 400-500 साल पहले, ओके, सम इटालियन गाय लूका डी बार्गो पाचोली करके एक था, उसने ये डेवलप किया है 400-500 साल पहले सिस्टम, जो हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, डेबिट क्रेडिट वाली सिस्टम। ये सिस्टम 400-500 इयर्स पहले डेवलप हुई है, और ये जो सिस्टम है इसमें सालों से जो रूल फॉलो करते आ रहे हो आप, ऑटोमेटिकली अनसेड, जो बेस्ट वे से आपके अकाउंट्स दिखा सके, उनको कहा जाता है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट कोई आपको बोलेगा नहीं कि ये फॉलो करो, ये होना चाहिए, आपको पता नहीं होंगे तो भी आप करते रहोगे। आप जैसे मैं अगर रूल बोलूंगा उसके हिसाब से ये कंसेप्ट फॉलो होते ही रहेंगे, अपने आप होते रहेंगे। तो आपको समझना जरूरी है कि ये कंसेप्ट का मतलब क्या है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ पुअर चार्टर्ड अकाउंटेंट इज दिस। पुअर चार्टर्ड अकाउंटेंट खाली रूल 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 रट्टा मार के आया है। Good chartered accountant knows the meaning behind what is happening, why it is happening. Okay, why it is happening. So, what are concepts? Concepts का मतलब होता है unsaid rules. आपको नहीं भी बोलूंगा ना तो भी ये फॉलो होंगे, लेकिन समझ के करोगे तो बेटर। सबसे पहला कंसेप्ट होता है एंटिटी कंसेप्ट, लिखा हुआ है वहां पे एंटिटी कंसेप्ट। व्हाट डज एंटिटी कंसेप्ट स्टेट? एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस and businessman are two separate entities. बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। सर बिजनेस में तो नहीं, जान तो है नहीं, ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, नहीं है, इट्स एन आर्टिफिशियल एंटिटी, बट इट इज एन एंटिटी। बिजनेस को अलग देखना है, बिजनेसमैन को अलग देखना है। मतलब क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक कीपिंग में। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला। वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। तो हमें हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का। आप सब लोग को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सबको बिजनेस बन जाने का। बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। आप बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन स्टार्ट करेगा बिजनेस, लेकिन हम जब रिकॉर्ड करेंगे ना ट्रांजैक्शंस, तब बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर काफी स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं। वो लोग सोचते हैं बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। हाँ भाई, आप बिजनेसमैन हो, लेकिन जब बुक्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की बारी आएगी ना बुक कीपिंग में, तभी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का? बिजनेस के Business. business. थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। आप एक बिजनेस हो, जैसे वो बोलता है ना तू बियर है, सुना है टीवीएफ में, तू बियर है, वैसे आप एक बिजनेस हो, आप एक बिजनेस हो, एंड थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। एक बार ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके दिमाग में बैठ गया कि मैं बिजनेस हूं, मुझे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है बुक में ट्रांजैक्शन, मेनी थिंग्स वुड बिकम इजी। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस कंसेप्ट? एंटिटी, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। ओके, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, बिजनेस शुरू में खाली था, बिजनेस था ही नहीं। बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया और किसने किया? अभी अभी
स्टार्ट कैसे होगा बिजनेस? क्या चाहिए उसके लिए? कैपिटल। पैसा चाहिए। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन, बराबर है? तो हम बिजनेस है, हम क्या सोचेंगे, बिजनेसमैन ने मेरे अंदर पैसा डाला तो मैं चालू हुआ। दैट इज व्हाट इज कैपिटल, दैट इज व्हाट इज कैपिटल। सो अमाउंट invested in the business by the businessman, that is called as capital. All of you got this? ये रोल प्ले याद रखना दिमाग में, आप लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है? रिकॉर्ड करते हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आगे जाके यही कंसेप्ट रखना, तब इजी 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 एक एक के बाद एक एक स्टेप बिल्टअप होते जाएगा। अच्छा, कैपिटल का मतलब पैसा ही डालना जरूरी नहीं है, याद रखना। जेठालाल गढ़ा ने अपना शॉप चालू करने के लिए 1 करोड़ रुपया डाला, तो वो 1 करोड़ भी कहां जाएगा? जेठालाल का कैपिटल, ठीक है? अब जेठालाल के घर पे 2 सोफा ऐसे ही पड़े थे। क्या पड़े थे? सोफा। वो सोफा भी वो शॉप में लेके आया, तो नट्टू काका बागा बैठ सके। तो क्या वो पैसे ला रहा है बिजनेस में कि सोफा सेट ला रहा है, फर्नीचर ला रहा है? तो फर्नीचर भी लाया, वो भी कैपिटल ही गिना जाएगा। एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन इज कॉल्ड कैपिटल। तो ओनर जो है, बिजनेसमैन जो है, बिजनेस के अंदर पैसा लेके आएगा तो भी कैपिटल गिना जाएगा, फर्नीचर वगैरह लेके आएगा तो भी कैपिटल गिना जाएगा, ओके? गुड्स लेके आएगा, मोबाइल फोन, तो भी कैपिटल गिना जाएगा, कुछ भी लेके, एयर कंडीशन लेके आया घर से, वो भी कैपिटल गिना जाएगा। तो कैपिटल का मतलब देखो उधर लिखा हुआ है, कैश और काइंड, यानी सी दैट। तो कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल मतलब एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन, एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? Sir, will labor be also counted as capital? लेबर वो घर से थोड़ी लेके आया बागा और नट्टू काका को, तो बाहर से आए ना। जेठालाल अपने घर से, अपने पर्सनल बिलोंगिंग से कुछ भी बिजनेस में ला रहा है, दैट वुड बी कैपिटल, बराबर? सर जेठालाल टप्पू को लेके आया तो? टप्पू इज अ थर्ड पार्टी ना, उसको एम्प्लॉय के जैसा रखेगा, अदरवाइज टप्पू विल बी द ओनर, नेक्स्ट ओनर आफ्टर जेठालाल। जेठालाल एज एन ओनर निकल जाएगा, फिर टप्पू एज एन ओनर आ जाएगा। बोथ आर पार्ट ऑफ ओनर ओनली। बट हाँ, अगर टप्पू को थर्ड पार्टी के जैसा, नट्टू काका के बागा के जैसा पगार दे रहा है, देन ही इज एन एम्प्लॉय, उसको सैलरी देंगे, ओके? तो बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए या रन करने के लिए आप कोई भी एसेट लेके आओ, कैश लेके आओ, फर्नीचर लेके आओ, ओके, एयर कंडीशनर लेके आओ, पैसा लेके आओ, ओके, दैट इज ऑल कैपिटल। ये सब मैं आता हूँ, एम्प्लॉयज वगैरह आगे हायर करेंगे। तो अभी चलो, हमने 1 करोड़ रुपया डाला, ओके, लेट्स स्टार्ट अवर बिजनेस। 1 करोड़ रुपीस डाला, 1 करोड़ रुपीस डाला, 1 करोड़ रुपीस से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है? अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ, 1 करोड़ रुपया डाला, शॉप बना दी, एयर कंडीशनर वेयर कंडीशनर सब सेटअप किया, मोबाइल फोन खरीदा, मोबाइल फोन बेचा, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ, फिर क्या करेगा जेठालाल? प्रॉफिट को ऐसे ही रख देगा बिजनेस में? व्हाट ही विल डू? री इन्वेस्ट करेगा। री इन्वेस्ट करेगा। क्या पूरा री इन्वेस्ट कर देगा? खाएगा कुछ नहीं, पार्ट री इन्वेस्ट करेगा, थोड़ा पार्ट री इन्वेस्ट करेगा। और पार्ट क्या करेगा प्रॉफिट का? Keep with him. पास रखेगा। घर पे लेके जाएगा, जलसा करेगा, डांडिया रास खेलेगा, जलेबी फाफड़ा खाएगा, करेगा कि नहीं? तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। उधर पढ़ो ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स इज द सेकंड टर्म। ड्रॉइंग्स मतलब अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन। वापस आई एम रिपीटिंग, इज बिजनेस एंड बिजनेसमैन वन एंड द सेम? नो, बोथ आर सेपरेट एंटिटी। तो बिजनेस में ओनर कुछ लाता है तो वो टर्म को क्या कहा जाता है? व्हाट इट इज कॉल्ड एज Capital. और बिजनेस में से कुछ लेके जाता है फॉर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड एज Drawing. ड्राइंग। वापस ड्रॉइंग्स भी पैसा ही लेके जाए ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार जेठालाल अपनी दुकान में खड़ा था, वहां पे बापूजी आए। बापूजी ने बोला, ए जेठिया, मेरा मोबाइल खराब हो गया है, मेरे को दूसरा मोबाइल दे। तो जेठालाल ने बोला, अभी अभी देता हूँ बापूजी, अभी देता हूँ। उसने मोबाइल निकाला और बापूजी को दे दिया, नया मोबाइल। क्या वो पैसा लेगा उनसे? नहीं, बापूजी लेके गए मोबाइल।
सो क्या हुआ यहाँ पे, दुकान में से, बिजनेस में से गुड्स चले गए घर पे पर्सनल यूज के लिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रॉइंग। तो कैपिटल का मतलब और ड्रॉइंग्स का मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? कैपिटल का मतलब एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। एंड व्हाट इज ड्रॉइंग? एनीथिंग withdrawn. anything withdrawn from the business by the business, that is called as drawing. Is this part clear? पैसा लेके गया, फर्नीचर लेके गया, गुड्स लेके गया, घर पे वापरने लेके गया, that is what is called as drawing. The term used would be called as drawing. ये दो कंसेप्ट क्लियर हुए, ड्रॉइंग्स और कैपिटल। धीरे धीरे सब बिल्टअप होगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे पिक्चर चालू हुआ है। ओके, थर्ड टर्म, कैन यू सी द थर्ड टर्म? What is the third term? Debtor. Debtors. What are debtors and what are creditors? Okay, what are debtors and what are creditors? Now tell me, we are in which business? Trading. Sole proprietary. Sole proprietary trading business. Okay, sole proprietary trading business. Harshil Bhanushali, Bhaumik Gadvi, why is your video off? Sir, there is some network issue, no, that's why. Virali Shah, Shubhan Gaikwad, Arnav Kundar. Pay attention. Now, who are debtors and who are creditors? Okay, off videos will be out now without warning. Better keep it on. Okay, I told you in the first lecture. Please keep the video on throughout. Now, who are debtors and who are creditors in a trading business? ठीक है, अब जेठालाल गड़ा का एग्जाम्पल हो. What does जेठालाल गड़ा do? He buys and sells mobile phones, electronics. तो किसी से तो खरीदता होगा और किसी को बेचता होगा, बराबर है ना? तो हम लोग भी वैसे मोबाइल फोन डीलर हैं, हम लोग भी डीलर हैं, हम लोग ट्रेडर हैं, हम लोग किसी से परचेस करते होंगे, ओके, और किसी को हम लोग सेल करते होंगे, बराबर है? तो जिस बंदे से हम लोग गुड्स खरीदते हैं, ओके, खरीदते हैं, और जिस बंदे को बेचते हैं, उन दो बंदों को कहा जाता है क्रेडिटर। जिससे खरीदा उसको क्रेडिटर और जिसको बेचा उसको डेटर। जिससे खरीदा उसको क्रेडिटर और जिसको बेचा उसको डेटर। अब इसका डिटेल में मतलब समझो। दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। डू यू नो हर्षिल भानुशाली बिटवीन कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस? Yeah, in credit we have to pay the bill amount within 45 days or the card will be blocked. You are telling me about credit card, boss. I'm not asking you about credit card. Credit transaction and cash transaction. What is the difference between the two, credit transaction and cash transaction? We have to pay the money after few days. Very good. After few days in which transaction? Creditor. And, Purchasing something. हाँ, and cash transaction में? We have to give the money right away. Right away, absolutely perfect. So जेठालाल गड़ा ने या हमने 1 लाख रुपए के मोबाइल फोन खरीदे। कितने के खरीदे? 1 लाख रुपीस के मोबाइल फोन खरीदे। अभी मोबाइल फोन का बिजनेस करना है तो मोबाइल फोन खरीदना पड़ेगा, और ताबड़तोड़ पेमेंट कर दिया, तो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट ट्रांजैक्शन? Cash. कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन कहा जाएगा खरीदा और पेमेंट कर दिया, बराबर है? बट अगर खरीद लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, हमने बोला 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दैट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गॉट दैट मीनिंग ऑल ऑफ यू? अब जिस बंदे को अभी ने मोबाइल फोन खरीदा और ताबड़तोड़ पेमेंट कर दिया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो फिर कोई क्रेडिटर नहीं होगा। बट अगर मोबाइल फोन खरीदा और पैसे नहीं दिए, देने बाकी हैं, तो वो जो बंदा है जिसको पैसे देने बाकी हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ क्रेडिटर। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ क्रेडिटर। क्या बोला? आपने गुड्स खरीदा और पेमेंट कर दी, तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो कुछ पैसा देने का बाकी नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन, वो बंदा कुछ नहीं, नो रिलेशन विद दैट बंदा नाउ। बट
अगर खरीदा और पेमेंट पेंडिंग रखा, 1 महीने बाद पैसा देंगे, 1 महीने बाद पैसा देंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और जिस बंदे को पैसा देना है, जिस व्यक्ति को पैसा देना है, वो व्यक्ति को कहा जाता है क्रेडिटर, वो व्यक्ति हुआ क्रेडिटर। तो जेठालाल गड़ा ने रामसुंग कंपनी, सुना होगा रामसुंग कंपनी, रामसुंग कंपनी से टीवी सेट्स खरीदा। ओके, तो रामसुंग कंपनी को पैसा देना बाकी है, तो हु इज रामसुंग कंपनी फॉर जेठालाल? Creditor. क्रेडिटर, ही इज अ क्रेडिटर, बराबर है कि उसके पैसा देना बाकी है। ऑन द अदर हैंड, जेठालाल ने किसी को गुड्स बेचा ऑन क्रेडिट, कैश में बेचा तो कुछ नहीं, कस्टमर आता है दुकान में, मोबाइल लेके जाता है, पैसा देके जाता है, तो कुछ नहीं। लेकिन कोई होटल में 1000 टीवी सेट्स का ऑर्डर आया, वहां पे वो टीवी सेट्स बेचने गया और पैसा आना बाकी है, पैसा आना बाकी है, तो वो बंदे को क्या कहा जाता है? Debtor. Debtor. दैट पर्सन इज कॉल्ड एज योर डेटर। तो क्रेडिटर और डेटर का मतलब समझ आया आपको? क्रेडिटर का मतलब जो पर्सन से आप गुड्स खरीदते हो लेकिन पैसा दे देते हो कि देना बाकी है? देना बाकी है। देना बाकी है, देना बाकी है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ क्रेडिटर। और जो बंदे को आप गुड्स बेचते हो और पैसा लेना बाकी है, क्रेडिट पे बेचा है, 1 महीने बाद पैसा आने वाला है, कैश पे नहीं, क्रेडिट पे बेचा है, 1 महीने बाद पैसा आने वाला बाकी है, तो व्हाट इज दैट पर्सन कॉल्ड एज? Debtor. डेटर। सिंपल, जिसको पैसा देना है, जिससे पैसा लेना है। जिसको पैसा देना है, क्यों पैसा देना है? क्योंकि गुड्स खरीदा है, गुड्स खरीदा, पैसा देना बाकी है, ही इज योर क्रेडिटर। गुड्स बेचा है, पैसा लेना बाकी है, ही इज योर डेटर। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये तो मैंने जनरल एग्जांपल दिया, बिजनेस में डेटर और क्रेडिटर गुड्स के वजह से होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि गुड्स के वजह से ही हो। क्रेडिटर और डेटर है ना, बहुत ही जनरल टर्म है। क्रेडिटर मींस एनी पर्सन टू whom you are supposed to pay the money, and debtor means any person from whom you are supposed to receive the money. Another example, आपने लोन लिया है, लोन, आपने कोई फ्रेंड से लोन लिया हुआ है, तो लोन चुकाना बाकी है, ऑब्वियसली बिजनेस के लिए लोन लिया, नॉट पर्सनल लोन। बिजनेस के लिए आपने कोई फ्रेंड से लोन लिया हुआ है, तो लोन का पैसा देना बाकी है, यस और नो? तो वो फ्रेंड भी आपका क्रेडिटर गिना जाएगा, क्रेडिटर फॉर लोन, वो फ्रेंड भी आपका क्रेडिटर गिना जाएगा। और लोन, किसी को आपने लोन दिया है तो लोन का पैसा लेना बाकी है, तो वो बंदा भी आपका डेटर गिना जाएगा, डेटर फॉर लोन। तो ऐसे मत सोचना कि डेटर और क्रेडिटर सिर्फ गुड्स के लिए होता है। हाँ, 90% गुड्स के लिए होता है, जनरली गुड्स के लिए होता है, बट कोई भी रीजन हो सकता है। आपने बिजनेस के लिए, बिजनेस में बिजनेस को, किसी को कुछ पैसा देना बाकी है, चाहे गुड्स के लिए पैसा देना बाकी है, चाहे लोन के लिए पैसा देना बाकी है, या फॉर सिंपल मैटर नट्टू काका की सैलरी देनी बाकी है, नट्टू काका की सैलरी, काम हो गया है और सैलरी देनी बाकी है, तो नट्टू काका विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। क्रेडिटर का मतलब क्या? एनी person to whom we are supposed to pay the money. We owe something to someone. If we owe something to someone, that person is called as a creditor. And if someone else owes something to us, that person is called as debtor. Is this clear? अब मुझे बात सोच के बताना, जो हमारा क्रेडिटर है उसके लिए हम कौन है? Debtor. जो हमारा डेटर है उसके लिए हम कौन है? Creditor. साइकिल गोज ऑन, इट इज अ कॉमन लॉजिक, कॉमन सेंस। जो हमारा क्रेडिटर है उसके लिए हम डेटर है, हमें उसको देना बाकी है, उससे हमें उसको हमसे पैसा लेना बाकी है। और जो बंदे से हमें पैसा लेना बाकी है वो कौन है? हमारा डेटर है। और उस डेटर के लिए हम कौन हुए? क्रेडिटर। बात समझ आई? हु इज अ डेटर, हु इज अ क्रेडिटर? मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल बिजनेस में अगर आपने गुड्स खरीदा और ताबड़तोड़ पैसा दे दिया, देन विल दैट गाय बी कॉल्ड एज योर क्रेडिटर? No. क्या क्रेडिटर? पैसा तो आप ही दीदा, हवे काय सेनु क्रेडिटर? लोन चुकावी दीधું, હવે શેનું ક્રેડિટર? હવે નો ક્રેડિટર।
वैसे ही ताबड़तोड़ पैसा आ गया, देन इज दैट गाय योर डेटर? No. 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 Debtor and creditor arise because of credit transactions. अब आप मुझे थोड़ा बिजनेसमैन वाला दिमाग देखो, लेट्स सी किसके पास है. ओके, आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ प्रैक्टिकल. आप जब मोबाइल फोन का बिजनेस करोगे, डीलर बन गए आप मोबाइल फोन्स के, ठीक है, तो आप मोबाइल फोन्स खरीद रहे हो, मोबाइल फोन सेल कर रहे हो. मुझे सोच के बताना, क्या आप ये बिजनेस या फिर जो भी मेजॉरिटी बिजनेसेस हैं, क्या ये पूरा कैश पे करोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस क्रेडिट पे होता है? क्या लगता है आपको? क्रेडिट पे होता है majority। Credit पे होता है। क्रेडिट पे होता है. ओके, क्रेडिट पे होता है, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं होता. आपने 1 करोड़ रुपया डाला, लेकिन उसका शॉप खरीदा, फर्नीचर खरीदा, सब बना दिया ना. अभी मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसा चाहिए. सबके पास 50 लाख रुपया थोड़ी होगा मोबाइल फोन. एटलीस्ट आप दुकान में जाओगे, किसी भी शॉप में जाओगे, अच्छा मोबाइल का शॉप, इलेक्ट्रॉनिक का शॉप, नहीं तो 200-500 आइटम तो आपको दिखेगा. तो 40-50 लाख रुपए का माल होता है शॉप में. एक मोबाइल ही 70-80,000 का हो जाता है. भी होते हैं 20-30,000, 40,000. फिर वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सब मिला दिया. हम लोग तो चलो मोबाइल फोन के डीलर है, तो मोबाइल फोन का भी एग्जांपल लो, तो उसमें बहुत सारे मोबाइल फोन होते हैं ना शॉप में देखने के लिए कस्टमर्स को. होते हैं कि नहीं होते? तो 40-50 लाख रुपया कोई अपफ्रंट थोड़ी देके मोबाइल फोन खरीदेगा. आर यू गेटिंग दिस? तो हमेशा याद रखना, बिजनेस में क्रेडिट सिस्टम चलता रहता है. बिजनेस में क्या चलता रहता है? क्रेडिट का सिस्टम चलता रहता है. क्रेडिट का सिस्टम चलता रहता है. अभी हम लोग कौन से ट्रेडर हैं? तो हम लोग रिटेलर नहीं है जो कस्टमर को बेच के कैश लेते हैं. हम लोग होलसेलर है. जेठालाल भी थोड़ा रिटेलर है, बट होलसेलर भी करता है कभी कभी. 10-15-100 टीवी सेट भी बेच देता है. तो हम लोग कौन है? हम लोग होलसेलर है. होलसेलर कौन होता है मालूम है आपको? हु इज अ होलसेलर? People who sell in bulk. पीपल हु बाय इन बल्क एंड सेल इन बल्क. बराबर है? तो हम लोग होलसेलर है. हम लोग डायरेक्टली मार्केट में कस्टमर रिटेलर नहीं है. हम लोग होलसेलर है. तो हम लोग मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और रिटेलर को बेचते हैं. रिटेलर आगे कस्टमर को बेच देगा. तो होलसेलर के जैसा तुमने 1 करोड़ का मोबाइल फोन खरीदा या 50 लाख का मोबाइल फोन खरीदा, वुड यू बी एबल टू पे 40-50 lakhs अपफ्रंट? यू बाय इट ऑन क्रेडिट. आप क्या बोलोगे इसको? मैं 50 लाख का मोबाइल फोन खरीद रहा हूं, 50 लाख का मोबाइल फोन खरीद रहा हूं, ओके, और मैं तुमको 1 महीने बाद पैसे दूंगा. कितने महीने बाद पैसे दूंगा? 1 महीने बाद. और यही जब मोबाइल फोन में अपने रिटेलर को बेच दूंगा, डेटर को बेच दूंगा, उस तो मैं क्या बोलूंगा? तू मेरे को 20 डेज में पैसा दे देना. कितने दिन में दे देना? 20 डेज. क्यों ऐसा किया मैंने? खरीदते वक्त 1 महीना और बेचते वक्त 20 डेज. रिकॉर्ड सॉरी, व्हाट इफ मैं इसको 1 month 15 डेज का क्रेडिट देता हूं? वुड दैट बी राइट फॉर द बिजनेस? You won't be able to pay your loan. It will be wrong. Why it will be wrong? You won't be able to pay your loan. I won't be able to pay my creditor only. Are you understanding? इसलिए क्रेडिटर से आप 1 महीने के क्रेडिट में खरीदोगे. आप क्रेडिटर को क्या बोलोगे? और होता ही है, 90% ऑफ द बिजनेस प्रैक्टिकली क्रेडिट पर ही होता है. आप क्रेडिटर को क्या बोलोगे? मैं आपको 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा. और आपको 50 लाख के मोबाइल फोन्स मिल गए, आपने रख दिया, ओके, और फिर आपने ढूंढा, कोई शॉप को ढूंढा, रिटेलर को ढूंढा, बातचीत की और उसको बेच दिया. और उसको क्या बोला? 20 डेज में पैसा दे देना. 20 डेज में पैसा दे देना. तो डेटर आके 20 डेज में आपको पैसा देके जाएगा. वो पैसा आप 1 महीने बाद अपने क्रेडिटर को दे दोगे. बीच में जो हुआ वो आपका नफा. यही 50 लाख का जो माल है, या आप डेटर को कितने में बेचोगे? 50 लाख में बेचोगे? 60, 70. 55. 50 लाख, 70 लाख, आपका प्रॉफिट, आपकी मर्जी. ओके, जितना प्रॉफिट लगाना है लगाओ. तो 50 लाख में खरीदोगे, 60 लाख में बेचोगे. डेटर आपको 20 दिन में कितना देगा? 60 लाख. और आप अपने क्रेडिटर को कितना दे दोगे? 50 लाख. बीच में 10 लाख क्या हुआ?
प्रॉफिट 20 दिन में पैसा डबल 20 दिन में होता नहीं है बट टाइम लगता है बट 10 लाख रुपए का तो प्रॉफिट हुआ अभी 10 डेज में खर्चा वर्चा भी निकालना बाकी है ओके सो डेटर और क्रेडिटर डिड यू अंडरस्टैंड दीस टू टर्म्स all of you Yes, sir. what do you mean by a creditor in a business majority of the transactions happen on cash or on credit what do you think Credit. Credit. credit Credit. ओके किसी के पास ताबड़तोड़ इतना पैसा देने के लिए कैश होता नहीं है तो क्रेडिट पर ही होता है तो आप खरीदते भी क्रेडिट पे हो और बेचते भी क्रेडिट पे हो क्योंकि उसके पास भी पैसा नहीं है पैसा अल्टीमेटली कौन देता है कस्टमर जो रिटेलर होता है वो कस्टमर को बेचता है कस्टमर पैसा देगा रिटेलर को रिटेलर पैसा देगा होलसेलर को होलसेलर पैसा देगा मैन्युफैक्चरर ओके दैट्स हाउ द साइकिल वर्क्स तो पहले सबने क्रेडिट पे खरीदा हुआ है होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से क्रेडिट पे खरीदा हुआ है और रिटेलर को क्रेडिट पे बेचा हुआ है और रिटेलर ने कस्टमर को आगे बेचना है और कैश कलेक्ट करके देना है तो टेल मी इन सिंपल वर्ड्स हु इज अ क्रेडिटर फॉर यू हु इज अ क्रेडिटर फॉर यू A person who lends the money. a person who lends us the money matlab we are supposed to Pay him. pay Pay we are him back. supposed to pay him. The person to whom we owe the money is this clear that's called as a creditor and who is a debtor From whom we The are supposed person to who get owes the us money. Person from which we have to collect the money. the money receive the money and in business generally debtor और creditor किसके वजह से होते हैं लोन्स के वजह से होते हैं कि गुड्स के वजह से होते हैं Good. Goods. 90% of the debtor and creditor are due to goods हार्डली कभी कभी लोन का व्यवहार होता है 90% आर ड्यू टू गुड्स बात समझ आई पक्का कंसेप्ट बैठा डेटर क्रेडिटर का तनिषा को समझा कार्तिक को समझा सिद्धार्थ अश्मी प्रियल पटेल लौकिक स्टिल थिंकिंग नो यू हैव एनी डाउट सिद्धि ठक्कर ऋषि शाह वेदा राणे समझ रहा है पक्का इतनी अजमेरा ओके ये कौन है मिष्टी मेहता मेरे को खाली तुम्हारा चश्मा और सर दिख रहा है थोड़ा नीचे करो मोबाइल या जो भी है लैपटॉप ओके ओके शक्ल दिखना चाहिए यार कम ऑन वेदिका मेहता बराबर रखो मोबाइल खुशी दोषी ने समझाय છે Yes, sir. okay any doubt if anyone has please tell me okay harsh mange is sleeping awake okay debtor or creditor capital or drawing मुझे बताओ what do you mean by capital tell me in your own words I'll come to the doubt one second what do you mean by capital Cash or kind Money which invested a by a person. businessman invests in business. anything that the businessman invests in business that's called Capital. cash or Capital. cash okay that's called capital to start the business money leke aaya furniture goods whatever he gets that's called capital what is drawings The money withdrawn by the Withdrawn personal. for personal use. withdrawn Yeah. from the business for personal use that's called drawing ईशा को समझ रहा है then what do you mean by creditor From Person whom Yeah. we Yeah. owe Whom we money. owe Low the money. money. to which we owe money okay उधर देखो दिया हुआ है read what have they given debtors and creditors they are the person whom we have to pay the money okay they are the person who have to receive the amount from other person example Ram sold goods of 10,000 to Raja on credit basis in this case Raja has to pay the money to Ram समझ में आया क्यों क्योंकि क्रेडिट बेसिस पे था what if it is on cash basis would he still be a creditor no okay then Raja becomes a Ram becomes a creditor for Raja and example number 2 Ajay gave a loan of 40,000 to Vijay in this case Ajay is the creditor of Vijay for the loan amount in general in a trading business creditors are considered only for goods for other creditors we use separate names or accounts जनरली आपके बिजनेस में क्रेडिटर और डेटर गुड्स के लिए होता है समझा आपको डेटर्स का पढ़ो डेटर्स के बारे में क्या दिया हुआ है द पर्सन फ्रॉम whom we are supposed to receive the money they are the person who have to pay the amount to the other person example Ram sold goods of 10,000 to Raja on credit basis in this case Ram has to receive the money from Raja so Raja becomes the debtor of Ram
And example 2, Ajay or Vijay ka. Ajay gave a loan to Vijay. In this case, Vijay is the debtor of Ajay. In general, in trading business, the debtors and creditors are mainly for goods. Same example लिया हुआ है दोनों. Okay, जो debtor है ऊपर, वहाँ ये नीचे सामने वाला पार्टी creditor है, ऊपर वाला पार्टी debtor. Yes, Laukik. Yeah, it's not particularly a doubt, but it's rather a question. Like, as you said, you gave an example of 50 to 60 lakhs thing. So there comes a question like, why don't we, in the current era, there's a question that why don't we remove the middleman, that is the trader? Exactly. Because directly from manufacturer to retailer or from directly manufacturer to wholesaler, Exactly. because the trader itself takes 10 lakh rupees, so that increases prices and that influences the market. Exactly. So why But is that happening? now to answer that question, you can remove that. Many businesses are following that practice. Okay. But now you have removed that trader. But in a country like India, which is so hugely populated, you are removing that trader. It will create what? Unemployment. It will create unemployment for that trader, right? It is going to happen. So now there are two choices. Either that trader works for something lesser or do his guzara with whatever he can. But if this situation bubbles up a lot, to remove all the traders from the system, what will happen? There will be so much of unemployment in the system. And so much of unemployment, then they will revolt. Because there is no enough of employment opportunity. And money is cornered by only few rich people. And then what happens? Civil war. Okay, revolutions. You have seen that in history, French Revolution, American Revolution, English Revolution. That's what happened, all these things. Okay, so that happens mainly due to inequality of income. Inequality of income. Obviously, from the business point of view, you are correct. कि ऐसा ही होना चाहिए. Middleman होना नहीं चाहिए. Directly manufacturer से, और ऐसे हो रहा है. Present day में अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे traders are going out of business. Why? Due to this Amazon and Flipkart and online and e-commerce. What do they do? Directly manufacturer से customer को बेच रहे. All the middlemen are getting removed. But अभी वो middlemen ने भी थोड़ा थोड़ा tactics use कर लिया है, government को pressurize किया है. अभी government ने भी law pass किया कि Amazon, Flipkart and all flash sale नहीं कर सकते हैं, एक limit के ऊपर discount नहीं दे सकते हैं. ये सब restrictions डाले हुए. So that customer के लिए prices same हो, online खरीदे कि offline, यहाँ पे भी खरीदे कि वहाँ पे. Government has to look for the entire country, ना, not only for one business. You will think from your business point of view, but government has to think from the entire country point of view. निकालना business के लिए better है. It is personal virtue, but public wise, that way. But like as government has made rules, but the JioMart is going to try that itself. They are giving a platform, What and JioMart the is doing, retailers. that is a good thing. JioMart is not removing the middleman. JioMart doing trader और customer को connect करता है. That's a good thing. So delivery खाली वो handle करता है. Sir, but on Amazon too, there are many middlemen that are coming forward and selling, right? Yes, now they have found out a tactic. So all middlemen are only enrolling on Amazon, Flipkart पे. कुछ ना कुछ करेंगे ना वो लोग. ऐसा थोड़ी करेंगे कि out of business हो जाए. बराबर है ना? तो ऐसा अभी offline था, अभी online हो रहा है. वही चीज online हो रहा है. निकल नहीं जाएगा. But traders तो रहने वाले हैं. Traders will be there in the business. Okay, that's for sure. क्योंकि इंडिया पॉपुलेटेड इतना है. अमेरिका जैसा कंट्री होता, यूरोप जैसा कंट्री होता, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो फिर आप डायरेक्टली बिजनेस मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर कर सकते हो. यहाँ पे लोग ही इतने, तो एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए ना, वो सब चालू ही रहने वाला. यस हंसिका. Sir, are drawings allowed in partnership firms? Yeah, And how does that work? सेम वे पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में खाली ओनर्स बढ़ गए, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है. Yeah, but प्रॉफिट होगा ना. sir, फिर एक जन निकालेगा पर्सनल यूज के पैसा, तो how much is their allowance? नहीं, that will be decided by the partner. Partnership जब बनता है ना, they make an agreement and they list down everything in that agreement. That agreement is like their constitution. अपना कैसा इंडिया का constitution है, we have to follow the law. So like that partnership का constitution होता है, partnership agreement, they have to follow the law. Once they have decided, then they can follow the rules and withdraw that much, which is limited in the agreement. Okay, sir. Thanks. Yes, guys. Any other doubt?
So clear with debtors and creditors, all of you got that? Now let's move to the next term, that is bad debts. What do you mean by bad debts? Bad debts का मतलब क्या? देखो, यही एग्जांपल लेते हैं. मैंने 50 लाख का मोबाइल फोन्स खरीदा फ्रॉम माय क्रेडिटर्स. उसको 1 महीने में पैसा देना बाकी है. उसको बेच दिया टू माय रिटेलर, टू माय डेटर फॉर 60 lakhs. बराबर है? अब 50 लाख का 60 लाख में सेल किया, 10 लाख तो मेरा प्रॉफिट है. डेटर को मैंने बोला है 20 दिन बाद 60 lakhs दे देना, 20 दिन बाद 60 lakhs दे देना. बराबर? अब डेटर के शॉप में आग लग गई, पानी आ गया, फ्लड्स आ, डेटर का सब माल खराब हो गया. डेटर हो गया बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, उठ गया. डेटर बोलेगा सर जी मैं आपको 60 लाख नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको कैसे तो करके 55 lakhs दे दूंगा. कितना दूंगा? 55 lakhs. 5 lakhs नहीं दे पाऊंगा. क्यों नहीं दे पाऊंगा? मेरा दुकान में आग लग गया, मेरा दुकान में पानी आ गया, खराब हो गया, कोरोना आ गया, प्रॉब्लम्स आ गई, बैंकरप्ट हो चुका हूं मैं. तो आपको जक मार के वो पैसा छोड़ना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बैड डेट. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बैड डेट. ऑब्वियसली आप ऐसे तो नहीं छोड़ोगे, केस वेस करोगे, पुलिस को बुलाओगे, कोर्ट में जाओगे, रखड़म पट्टी करोगे, लेकिन डेटर के पास पैसा ही नहीं है, वो एक्चुअली उठ गया है, एक्चुअली इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे यू द मनी. दैट मनी इज कॉल्ड एज बैड डेट. दैट मनी इज कॉल्ड एज बैड डेट. सो बैड डेट का मतलब अमाउंट दैट इज इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर. Amount that is irrecoverable from a debtor, that is called as bad debt. It is a gain or a loss for us? It's a loss in a loss for the business. Obviously it's a loss for the business, right? कितना आना था? 60 लाख आना था, अभी कितना आया? 55 lakhs. क्या आप बोल सकते हो अपने क्रेडिटर को यार मेरे डेटर ने बैड किया, मैं भी आपको 5 लाख कम दूंगा? Will you listen to that? बोलेगा चल चल वो तेरा प्रॉब्लम है, तूने अपना डेटर बराबर से देखा नहीं, मेरा क्या गलती, मेरे को तो पूरा पैसा चाहिए. तो आपको आएगा 55 लाख, आपको देना पड़ेगा 50 लाख. अब आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 लाख. इज दिस पार्ट क्लियर? सो बैड डेट्स मतलब अमाउंट दैट इज इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर. ओके, व्हाई इररिकवरेबल? बिकॉज दैट डेटर हैज इनकर्ड सम ह्यूज लॉसेस, सो ही इज इन अ नॉट इन अ पोजीशन टू पे यू द मनी. Okay, that is what is called as bad debt. Now practical situation में there are many voluntary defaulters. Have you heard about नीरव मोदी, विजय मल्ल्या? ये लोग ने क्या किया? बैंक से लोन लिया, लॉस वॉस किया, लेकिन इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ था, पैसा था, फिर भी किधर भाग गया? लंदन. दे आर कॉल्ड एज विलफुल डिफॉल्टर. अब वो बैंक ने, आप इमेजिन करो, बैंक ने विजय मल्ल्या को लोन दिया, तो बैंक कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ ना, और विजय मल्ल्या डेटर हुआ ना उसका. और डेटर से पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी विजय मल्ल्या से पैसा आ रहा है कि बैंक को नहीं आ रहा है? नीरव मोदी से पैसा आ रहा है कि बैंक को नहीं आ रहा है? तो बैंक के लिए क्या हो जाएगा? वो बैड डेट. पंजाब नेशनल बैंक को 12,000 करोड़ का बैड डेट लगा ड्यू टू नीरव मोदी. हाउ मच? 12,000 करोड़ रुपीस का बैड डेट हो गया. किसका? पंजाब नेशनल बैंक का. किसकी वजह से? नीरव मोदी के वजह से. यू अंडरस्टैंडिंग दिस लिंक? हु इज नीरव मोदी फॉर दैट बैंक? डेटर. एंड हु इज द बैंक फॉर दैट नीरव मोदी? क्रेडिटर. बराबर है? तो उसने गुड्स नहीं बेचा था, लोन दिया था. लोन के लिए भी हो सकता है. तो लोन का पैसा आ जाता तो राजी खुशी, पैसा दिया ही नहीं, 12,000 करोड़ नहीं दिया, भाग गया, तो उसको लॉस हो गया 12,000 करोड़ का. दैट इज बैड डेट फॉर दैट बैंक. दैट इज बैंक के टर्म्स में वी कॉल्ड इट एज एनपीए. कभी न्यूज़पेपर पढ़ना अभी, और ये टर्म आएगा तो याद रखना, एनपीए. एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ओके, बैंक के टर्म्स में हम बैड डेट को एनपीए बोलते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग टर्म्स में बैड डेट को बैड डेट बोलते हैं. बात समझ आई? यस Sir, but let's say Nirav Modi ran away, then can't the bank dissolve his assets and recover the amount? That's what they are planning to do now. That's what they are planning to do now. लेकिन अगर ऐसा ही नहीं तो गया ही ना पैसा. अभी वही कर रहे हैं, प्रोसेस चालू है.
उसको पकड़ के लेके आने का, इधर इंडिया में लेके आने का, सब धीरे 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 एसेट लिक्विडेट करके निकालने का। पूरा मिल गया तो नसीब, बट पूरा तो मिलने का सवाल नहीं है। 12,000 करोड़ में से मिलेगा तो भी 6, 7, 8,000 करोड़ मिलेगा, 3-4 हजार करोड़ तो जाएगा ही जाएगा। ऑब्वियसली दैट्स व्हाट आई सेड, यू विल रन टू कोर्ट्स, यू विल डू ऑल द मगजमारी, जितना कर सको उतना रिकवरी ट्राई करो, लेकिन बाद में जो नहीं हुआ दैट इज Sir, so you said that only 7 or 8,000 crores will be recovered, but the collateral that might be given will be worth 12,000 crores. That's what वही got तो the स्कैम हो गया था। कोलैटरल के बिना लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर दिया था बैंक ने। 12,000 करोड़ का कोलैटरल था ही नहीं। यूजुअली आप बैंक से लोन लेने जाओ, आपको कार लोन चाहिए, बैंक क्या बोलेगा? collateral. कोलैटरल का मतलब Some asset that you have to give as a guarantee. गाड़ी गिरवी रखो, घर गिरवी रखो, Security. गहने गिरवी रखो, कुछ तो रखो। आप बैंक है ना, नॉर्मल पर्सन, आप और मैं अगर लोन लेने जाते हैं ना बैंक में, तो कैसा है पता है? आप 100 रुपए का एसेट रखोगे ना, तो आपको 65 रुपीज का लोन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको होम लोन चाहिए, तो आपने 1 करोड़ रुपए का घर रखा ना बैंक में, तो आपको 65 लाख का ही लोन देता है बैंक। आपने 10 लाख की ज्वेलरी रखी है बैंक में, 10 लाख की, तो 6,50,000 का ही लोन देगा बैंक। दैट्स फॉर अस, यू एंड मी। बट इफ नीरव मोदी, उसने क्या किया? बैंक एम्प्लॉयज को ही फोड़ दिया पैसा खिला के। हैव यू सीन दैट स्कैम 1992, हर्षद मेहता? द सेम थिंग ही डिड। बैंक का एम्प्लॉय, वो सीतारामानंद था ना बेचारा, साउथ में से पकड़ के लेके आता है उसको, याद है? एसबीआई का एम्प्लॉय, सर 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 सर, वो वैसा इसने भी क्या किया? एम्प्लॉय को फोड़ दिया नीरव मोदी ने, पैसा खिला दिया एंड लोन सैंक्शन करवा दिया। लेटर ऑफ क्रेडिट, दे वर लाइक लोन्स। व्हेन यू डू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यू विल अंडरस्टैंड दैट। So they were like loans. So he took loans of 12,000 crores without any collateral. And then बोला कि आएगा पैसा, आएगा पैसा, आया ही नहीं कुछ। एंड फिर ये स्कैम बाहर निकला, लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन। नॉट नाउ, इट वाज गोइंग ऑन सिंस 8-9 years, 8-9 साल से चल रहा था। फिर बैंक एम्प्लॉय चेंज हुआ, नया एम्प्लॉय आया, वो देखा साला ये तो क्या कबाड़ा करके रखा है, उसने सब विसल ब्लो किया और पता चला। तो इट वाज अ स्कैम विदाउट कोलैटरल। तो अभी इसलिए मैंने बोला कि पूरा पैसा रिकवरी का चांस कम है। बाकी हमारा और आपका डिफॉल्ट हुआ तो बैंक पूरा एसेट बेच के रिकवर कर सकता है, ओके? बट सैडली फॉर रिच पीपल दे डोंट डू दैट। बट दिस सिचुएशन इज चेंजिंग इन इंडिया। होपफुली आप बड़े हो जाओ तब तक चेंज हो जाएगी, ओके? बट आप लोग स्कैम मत करना, आप लोग सिंसियरली लोन लेना और लोन चुकाना, ठीक है? So there is one more scam being discovered, no? Suchita Right Dalal is now. only she found. That is about Adani group of companies. That is just due to that is about price rigging of the shares. अदानी का जो शेयर्स है ना, 7 to 8 FIIs ने होल्ड करके रखा है just to boost up the price. That's a different story of shares. उसने लोन वोन नहीं लिया है, मतलब लोन्स भी लिया है बट उसका स्कैम नहीं। आ जाए नेक्स्ट टर्म पे। यहाँ तक कोई डाउट? फर्स्ट 5 टर्म्स, ऑल ऑफ यू गॉट दैट? Okay. Now let's understand 2 very important terms in any business. These are the last 2 terms. Then I'll stop. Assets and liabilities. Okay, assets and liabilities. हमेशा हम जो बुक कीपिंग के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जेठालाल का बिजनेस है या फिर हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, ओके? ये खाली पड़ा हुआ है। How did a business start? बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई? कैपिटल, ओके? कौन डालता है कैपिटल? ओनर। तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ध्यान से देखना, ये कंसेप्ट को समझना अच्छे से। देयर आर 2 parts when a business starts. There are liabilities and there are assets. Okay? There are liabilities and there are assets. This is an empty business. ओनर आया और उसने 1 करोड़ रुपया डाला, जेठालाल ने या हमने बिजनेस में 1 करोड़ रुपया डाला। कितना डाला? 1 करोड़ रुपीस, ओके? तो बिजनेस कैसे देखेगा? थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ओनर ने मेरे में 1 करोड़ रुपया डाला, दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल। तो कैपिटल में लिख देगा 1 करोड़ और सामने एसेट में आएगा कैश 1 करोड़। इन एनी डैम बिजनेस ऑलवेज
total of liabilities will be equal to total of assets always. ये बुक कीपिंग का फंडामेंटल डबल एंट्री सिस्टम है, आप लोग आगे लर्न करोगे डबल एंट्री सिस्टम. इसके हिसाब से हमेशा हमेशा लायबिलिटी विल बी इक्वल टू एसेट. व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी? बिजनेस सोच रहा है कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा ओनर का है, मुझे ओनर को वापस करना पड़ेगा. जब भी मैं बंद होऊंगा मुझे ये पैसा वापस करना पड़ेगा. तो लायबिलिटी का मतलब होता है एनीथिंग पेएबल टू समवन. एनीथिंग पेएबल टू समवन दैट्स कॉल्ड एज अ लायबिलिटी. सर अभी अभी आपने बोला वो क्रेडिटर होता है. सो क्रेडिटर इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी. लायबिलिटी मतलब एनीथिंग पेएबल टू एनीवन. क्रेडिटर इज अ टाइप, वन ऑफ द टाइप. जैसे ओनर को पैसा देना बाकी है वैसे क्रेडिटर को पैसा देना बाकी है, वैसे बैंक को पैसा देना बाकी है लोन के लिए. All these are examples of liability. So now liability का मतलब anything that the business has to pay to the owner. And what are assets? Assets mean anything that the business owns, anything that is under the control of the business, anything that will help the business to earn income in future, earn profits in future. That's called as an asset. I'll come to the doubts. Let me explain in detail. Okay. So liability का मतलब है anything that the business has to pay to someone. हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? ओनर की. बिजनेस बिजनेस क्या सोच रहा है? ओनर ने कैपिटल डाला है, मुझे उसको पैसा देना. तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी. बट उसके सामने इक्वल अमाउंट का कैश भी है. कैश इज एन एसेट. मतलब मुझे मेरे कंट्रोल में, मैं बिजनेस हूं, मेरे कंट्रोल में कैश है, मुझे जो करना होगा इस कैश का मैं कर सकूंगा. आई ओन दिस राइट नाउ, इट विल हेल्प मी टू अर्न प्रॉफिट्स इन फ्यूचर. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन एसेट. नाउ what will you do with this cash? The business has started. 1 lakh rupees have entered the business. Should we keep that cash as it is, or should we start to buy some for our mobile phone? We'll buy some Start to buy. We'll start buying. So let's assume we bought a property worth, let us say 40 lakh rupees. एक शॉप खरीदा हमने 40 लाख का. ये कौन कर रहा है? ये बिजनेस कर रहा है. डिसीजन सब बिजनेसमैन ले रहा है, लेकिन हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस. देखो अभी बिजनेस क्या करेगा? प्रॉपर्टी खरीदेगा और सामने क्या देना पड़ेगा उसको? कैश. तो क्या हो जाएगा अभी? ये कैश जो है 1 करोड़ से हो जाएगा 60 लाख, और यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाएगी 40 लाख. गॉट इट? प्रॉपर्टी आ गई. और क्या चाहिए? फर्नीचर चाहिए, शोकेसेस चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए. तो लेट्स बाय सम फर्नीचर. रेनोवेट करवा देते हैं. 10 लाख रुपीस का रेनोवेट किया हमने, फर्नीचर खरीदा. कितने का? 10 lakh. What will happen over here? Cash 50. Cash will increase or decrease? Decrease. Cash will become 50 lakhs. 50 lakhs. On the asset side, Furniture 10 lakhs. furniture 10 lakhs. All these are assets. All are owned by the business. But if you see properly, what is the total still of assets and liabilities? 1 crore. 1 crore. अभी भी बिजनेस ऐसा नहीं बोला है ओनर का. बिजनेस क्या बोल रहा है कि ये सब मेरे एसेट है, दे आर इन माय कंट्रोल. बट व्हेनेवर आई एम क्लोज्ड, व्हेनेवर आई एम शट डाउन, आई विल सेल दीज एसेट्स, आई विल गेट द मनी एंड आई विल पे ऑफ माय ओनर. आई विल पे ऑफ माय ओनर. यस और नो? सो कैपिटल इज द लायबिलिटी. लायबिलिटी का मतलब होता है एनीथिंग दैट यू ओwe टू समवन. एंड एसेट का मतलब होता है एनीथिंग दैट यू ओन, एनीथिंग दैट द बिजनेस ओन्स. owns, that is asset. Owes, that is liability. Owns, that is asset. Owes, O-W-E-S, that is liability. अब let's understand in आगे और डिटेल में समझते हैं. फर्नीचर खरीद लिया, बराबर है. प्रॉपर्टी रेडी हो गई, फर्नीचर खरीद लिया. ओके. अब चलो समझो मुझे और थोड़ा पैसा चाहिए. ओके. और थोड़ा फर्नीचर खरीदना है. थोड़ा कैश रखा हुआ है, लेकिन मैंने गुड्स के लिए रखा हुआ है. और थोड़ा पैसा चाहिए. अब मेरे पैसे घर के सब खत्म हो गए, बिजनेस में और पैसा चाहिए. तो कहां से ला सकते हो आप? लोन्स ले सकते हो आप, बैंक से लोन ले सकते हो आप. तो आपने लोन लिया हुआ है, 20 लाख रुपए का.
20 lakh. 20 अब lakh. क्या होगा बिजनेस में, यहाँ पे लायबिलिटी में आएगा बैंक लोन 20 lakhs, और एसेट्स में क्या बढ़ जाएगा, लोन Cash. Cash 70 lakhs. कैश हो जाएगा 70 lakhs. आर यू ऑल विथ मी? लोन लिया 20 लाख का और कैश हो गया 70 lakhs, एक्सपेंशन के लिए लिया. अब ये लोन भी क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, Liability. लेकिन सामने कैश आया है एसेट में, वो उसके कंट्रोल में है, वो उसका कुछ भी कर सकता है, फ्यूचर में एक्सपैंड कर सकता है, फ्यूचर इनकम्स कमाने में काम आएगा उसको. यस और नो? तो ये जो दोनों लायबिलिटी है, इसका नेचर होता है, इसका नेचर अलग अलग है. दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी and the capital is called as internal liability. Can you tell me why I have written external and internal? सर एक्सटर्नल बाहर से लिया है. एक्सटर्नल मतलब किसको देना बाकी है, बैंक को देना बाकी है, बाहर वाले को देना बाकी है, Someone other than the owner. someone other than the owner. And internal मतलब किसको देना बाकी है, Owners money. Businessman. बिजनेसमैन को देना बाकी है. ये बात समझ में आई आपको? दोनों लायबिलिटीज है, लेकिन एक इंटरनल एक एक्सटर्नल. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पॉइंट ऑफ सस्पेंस. नॉर्मल टर्म्स में व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लायबिलिटी, जैसे नॉर्मल टर्म में आई टोल्ड यू, जब क्रेडिटर की बात होती है, मतलब क्रेडिटर्स आर जनरली फॉर व्हाट, गुड्स के वजह से क्रेडिटर क्रिएट होते हैं नॉर्मल सिचुएशन में. वैसे नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट लायबिलिटीज, वी मीन विच लायबिलिटी, एक्सटर्नल और इंटरनल. सो वी मीन एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो इंटरनल लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी को कैपिटल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कैपिटल. तो व्हेन आई टॉक अबाउट लायबिलिटीज इन जनरल टर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट विच लायबिलिटीज, external liability. I'm talking about which liabilities, है दोनों liability, एक internal एक external. ओके, बट इन जनरल मैंने आपको बोला कि मेरा एसेट 1 करोड़ और मेरी लायबिलिटी 20 लाख, मेरा एसेट 1 करोड़ और मेरी लायबिलिटी 20 लाख. तो विच लायबिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो बचा हुआ 80 लाख इज माय कैपिटल, बिकॉज माय टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. Always they will be equal. Always they will be equal. Okay. Now let's do some business. Loan भी आ गया, पैसा भी आ गया. What is your business? What is your business? So, but if we To pay, sell mobile phones. Buy and sell mobile phones. Yeah, someone was asking something. sir, if we pay interest, then how will our assets and liability be equal? Yeah, interest you are talking. No, I'm coming to that. Interest loan पे देना है. Also the interest and profits too, ना? या मैं आ रहा हूँ, मेरे को एक्सप्लेन करने दो, वही पार्ट्स में मैं आ रहा हूँ. नाउ लेट्स डू सम बिजनेस. स्टार्ट तो करें, अभी तो लोन लिया है ना, 1 साल होगा फिर इंटरेस्ट दोगे आप. तो अभी हमें क्या क्या करना है, बिजनेस करना है मोबाइल फोन्स का. तो लेट अस अज्यूम हम लोग 80 लाख के मोबाइल फोन खरीद के लेके आए. कितने के, 80 लाख. 80 लाख के मोबाइल फोन खरीद के लेके आए, ऑन कैश और ऑन क्रेडिट. कैसे करोगे आप बिजनेस, Credit. क्रेडिट पे खरीदोगे, क्रेडिट पे खरीदोगे. नाउ यहाँ पे क्रेडिट पे खरीदा तो क्रेडिटर को पैसा दे दिया कि देना बाकी है, देना बाकी बाकी है. यहाँ तक सब लोग साथ में है. ऑल ऑफ यू आर हियर, वी आर डूइंग प्रैक्टिकल नाउ. ओके, फोकस. कितना क्रेडिटर को कितने का मोबाइल खरीदा हमने, 80 lakhs. 80 लाख का पैसा देना बाकी है. तो कहना है से creditor will become my liability over here for Yes. 80 lakhs. और मेरे को आया क्या, बिजनेस में क्या लिया मैंने, Cash. Products. नहीं, sorry, mobile Goods phone. worth 80 lakh. मोबाइल फोन्स लिया है, कैश थोड़ी लिया है. मोबाइल फोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक या गुड्स. इसको बोलते हैं गुड्स या स्टॉक. मोबाइल फोन जिसपे आप डील करते हो ना, दे आर योर स्टॉक, गुड्स. कितने का मोबाइल फोन आया, 80 लाख. स्टिल योर टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. Yes. Are you all with me? Samiksha Shah, are you all getting that? Diya Bhavisi, sorry. Getting this? Ishika Shah. हमने टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी सेम ही रखा है, वो होगा ही, अपने आप सेम होगा. और लायबिलिटी का मतलब क्या है, मुझे ये पैसा देना
बाकी है। एसेट का मतलब क्या, मेरे कंट्रोल में है, मुझे इससे फ्यूचर इनकम्स मिलेंगी। क्या किया हमने, मोबाइल फोन खरीद के लाया 80 लाख का। अब 80 लाख का मोबाइल फोन क्या करोगे, ऐसे ही रखोगे शोभा का गाठिया बना के बिजनेस में? सेल। यू विल सेल इट, राइट? किसको बेचोगे? रिटेलर्स। Retailer, रिटेलर्स को Retailer. बेचोगे। उस बंदों को क्या कहा जाता है जिसको आप बेचते हो? अच्छा, कैश में बेचोगे कि क्रेडिट में, विराली शाह? Credit. क्रेडिट पे बेचोगे। Credit. क्रेडिट पे बेचोगे, कितने में बेचना आप बताओ मुझे? 80 लाख का मोबाइल फोन 80 लाख में बेच देना? चैरिटी करनी है, सर्विस करनी है कि बिजनेस 1 में? crore। 80 लाख का मोबाइल फोन कितने में बेचोगे? 1 crore। 1 करोड़? 90 lakhs. Yes, 90 लाख? 90 lakhs. 1 crore, 1 1 crore। करोड़ 1 करोड़, चलो ज्यादा प्रॉफिट कर लेते हैं। 80 लाख का 1 करोड़ में बेच देते हैं हम लोग, ठीक है? दिस प्रॉफिट इज डिसाइडेड बाय द ट्रेडर, माइंड यू, प्रॉफिट इज डिसाइडेड। लेकिन आप एकदम अनशन भाव पे भी नहीं बेच सकते, बाजू वाला दुकान के साथ कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रखना पड़ता है आपको, ठीक है? तो 80 लाख का सपोज आप 1 करोड़ में सेल कर रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पे? 1 करोड़ में सेल कर रहे हो तो सोचो अभी क्या होगा। मोबाइल फोन रहेगा कि जाएगा बिजनेस में से? जाएगा। और क्या कैश आया? क्या आपने ताबड़तोड़ कैश में बेचा? नहीं, credit. No. क्रेडिट पे बेचा ना, तो क्या क्रिएट होगा? Asset। एसेट। Debtor. कौन सा एसेट? दैट एसेट इज कॉल्ड एज डेटर। दैट एसेट इज कॉल्ड एज अ डेटर। डेटर हो जाएगा इधर 80 लाख रुपीस। जैसे क्रेडिटर वॉज योर लाइबिलिटी, डेटर वॉज योर एसेट। डेटर इज योर एसेट, क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी। एसेट का मतलब एनीथिंग दैट द बिजनेस ओन्स, एनीथिंग दैट विल हेल्प इन अर्निंग फ्यूचर इनकम। कहीं से भी पैसा आने वाला है, बेचोगे तो पैसा आएगा, दैट इज योर एसेट। But That so is your asset. one A crore, debtor of 1 crore. that will be Debtor of another 1 crore. 80, right? 1 crore, my bad, sorry. Debtor of 1 crore, not 80 lakh. Very good, 1 crore प्रॉफिट लगाया है हमने। तो अभी तो इम्बैलेंस हो गया, 20 लाख का क्या हो गया? Profit। प्रॉफिट हुआ। Can we count them as drawing? ये होगा ना. पहले प्रॉफिट हुआ, ये समझ में आया? Yes। अब इमेजिन करो, वी आर बिजनेस, हमने 80 लाख का गुड्स 1 करोड़ में बेच दिया, 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? Capital. बिलोंग्स टू whom? ओनर, राइट? Yes। बिजनेस क्या बोलेगा? माई बाप, ओनर, आपने पैसा दिया, मैं तो सिर्फ आपका एम्प्लॉय के जैसा हूं, मैंने काम किया और जो भी प्रॉफिट आया मैं आपको वापस दे दूंगा। तो प्रॉफिट बिलोंग्स टू whom? प्रॉफिट बिलोंग्स टू द Owner. तो बिजनेस क्या करेगा? वो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देगा। प्रॉफिट ऐड हो जाएगा यहाँ पे 20 लाख। समझ में आया? ऐसे धीरे धीरे आपका कैपिटल बढ़ता है बिजनेस में। दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्थ। हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म नेटवर्थ? मुकेश अंबानी Yes। का नेटवर्थ $50 बिलियन, $80-60 बिलियन। ओके, अमेजॉन जेफ बेजोस का नेटवर्थ $170 बिलियन। सो व्हाट इज दिस नेटवर्थ? नेटवर्थ का मतलब ये होता है योर ओनर्स टोटल मनी इन द बिजनेस। ओनर का टोटल मनी इज कॉल्ड नेटवर्थ। तो जो भी कैपिटल डाला वो खुद ने डाला, उसमें जो भी प्रॉफिट होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? वो क्या होते जाते हैं? ऐड होते जाते हैं। प्रॉफिट ऐड होते जाते हैं। तो कैपिटल और प्रॉफिट ये इंटरनल लायबिलिटी है कि एक्सटर्नल लायबिलिटी? कैपिटल और प्रॉफिट Internal liability। क्यों इंटरनल लायबिलिटी? समझ में आया? किसको देना बाकी है ये? Owner. Owner। ओनर को देना बाकी है। व्हाट अबाउट बैंक लोन? External liability। External व्हाट liability. अबाउट क्रेडिटर्स? External। एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है? अभी ट्रांजैक्शन खत्म हो गया कि अभी भी कुछ बाकी है? बैंक को बाकी पैसा है। देना। पहला बैंक को भी पैसा देना है, लोन भी देना। पहले तो डेटर से पैसा लेना है ना, अभी तो खाली गुड्स बेचा है। 20 डेज के बाद डेटर विल गिव यू द मनी। हाउ मच डेटर विल गिव यू? 1 crore। 1 crore. Debtor assume is a good debtor, not Vijay Mallya and Nirav Modi. He will give us 1 crore full money. फुल मनी दिया। अब इमेजिन क्या होगा? डेटर ने पैसा दे दिया। What will be the change over here? Tell me. Debtor gave us 1 crore rupees. We will Cash remove will debtors and increase. add it to cash. Debtor. We Yeah, will remove cash from will- debtors. It's like this debtor are gone now. 1 crore पैसा दे दिया Creditor ना। will also be gone। अरे एक मिनट भाई, डेटर से तो लेने दे। अभी और क्या? डेटर
पैसा दे दिया तो नो मोर आर डेटर, और क्या चेंज होगा? Cash will Cash be will added be to कैश 170 बढ़ेगा ना lakh. कि कम होएगा? Increase इंक्रीज बाय हाउ मच? Increase. 1 crore. 1 crore. 1 करोड़। तो कैश कितना हो जाएगा आपका? 1 1 crore. 1.7 crore. 1 करोड़ 70 लाख लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बराबर है। अब क्या हो गया कि कुछ बाकी है? क्रेडिटर को पैसा Creditor. देना है तो लायबिलिटी चुकाना है, क्रेडिटर को पैसा देना है, कितना देना है? 1 करोड़ की 80 लाख 80 lakh. 80 lakhs lakhs. देना है। ओके 80 लाख देना है। क्या होगा अभी? 80 लाख दे दिया समझो, Cash will become 90 lakhs. कैश विल बिकम 90 lakhs. 1 crore 70 minus 80 lakhs is how much? 90. 90 lakhs. Cash will become 90 lakh. Very good. What else? Credit. Bank loan. Creditor will be removed Creditor from will be liability कर रहा हूँ removed. अभी, क्रेडिटर पे कर रहा हूँ, क्रेडिटर। क्रेडिटर रहेगा कि Creditor चला will be जाएगा? removed. Creditor will will be be removed. removed. Creditor will be removed. Creditor would be removed. Are all of you with me यहाँ तक? अभी Yes. ट्रांजैक्शन, Yes. गुड्स का ट्रांजैक्शन कंप्लीट। Still my balance sheet total is how much? Same. 1 crore and 40 lakhs, both the sides. What can we conclude? Total assets are equal to Total liabilities. How many types of liabilities we are External. having? 2 types, internal and external liability मतलब internal. Owners. Owners. Owners Owners investment. Investment plus profits, that is all internal liability. What do you mean by external liability? From someone other than the From owner. Someone outside the other than the company. owner, outsider, maybe creditor, maybe bank loan, Bank loan. maybe bank loan, that is external liability. What are assets? What are assets? Every liability will have a corresponding asset. There is going to be some asset for some liability. Always total assets are equal to total. But what is the meaning of asset? Assets mean anything the business owns. Okay? Every liability के सामने asset होगा, but asset means वो उसके control में. It owns. It can make changes in the asset. आपने देखा, हमने फर्नीचर खरीदा, कैश दिया, गुड्स खरीदा, डेटर आया, डेटर से पैसा लिया, तो वी आर चेंजिंग द एसेट्स. इट्स इन आवर कंट्रोल. इट्स इन आवर कंट्रोल. दूसरा क्या है क्वालिटी ऑफ एसेट? इट शुड हैव वैल्यू. बेचोगे तो पैसा मिलेगा, बेचोगे तो पैसा मिलेगा. एंड इट विल हेल्प इन अर्निंग फ्यूचर इनकम. इट विल हेल्प यू इन अर्निंग फ्यूचर इनकम. इज दिस क्लियर? So they are all your assets. अब किसी ने बोला था इंटरेस्ट भी पे करना है बैंक लोन पे. 1 साल हमने लोन लिया, ओके 1 साल, अभी लोन पे इंटरेस्ट भी देना है. लेटेस्ट से 20 लाख पे 2 लाख रुपए इंटरेस्ट चढ़ गया. कितना है? 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट है. अब वो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस. मैं वो एक्सपेंस इनकम में आपको कल बताता हूं कंसेप्ट. Interest is not a liability. Interest is called as an expense. What are expenses? You record it every year on year. They are called as your expenses. Okay. So I'll come to that expense income part. So in short, expense का मतलब क्या है? आपका प्रॉफिट घटेगा. एक्सपेंस का मतलब आपका प्रॉफिट घटेगा और इनकम का मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. तो जब अगर मैं इंटरेस्ट पे करता हूं, अभी खाली शॉर्ट में समझ लो, कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा. इंटरेस्ट पे करना होगा ना तो क्या होगा? समझो 2 लाख का इंटरेस्ट पे करना है. कैश कितना हो जाएगा आपका? पैसा जाएगा 70. 2 लाख, ओनली 2 लाख, नॉट 88 lakhs. और इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस. इट इज नॉट अ लायबिलिटी. उधार नहीं है, इट्स एन एक्सपेंस. तो एक्सपेंस के लिए क्या करने का? प्रॉफिट कम कर देने का. तो अभी आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20 लाख से हो जाएगा 18 lakhs. That's how 18 you lakhs. pay interest. Okay, I'll come to that point in detail, expense and incomes. Okay, in the next lecture. So that's how you pay interest. Now let us repay the loan. Loan को भी चुका देते हैं. लोन को कितना चुकाना है? 20 lakhs. 20 lakhs. How much? What change I will do over here? 68 lakhs 68 cash. lakhs. Cash will now become 68 lakhs and लोन रहेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा. ये रहा आपका बिजनेस आफ्टर 1 ईयर. आफ्टर 1 ईयर अच्छा किया बिजनेस ने कि बुरा किया? अच्छा किया. अच्छा किया. कैसे बोल सकते हो अच्छा किया? The Profit is cash there. has प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया. 1 करोड़ पे 18 लाख रुपीस कमाए. कैपिटल 18 लाख रुपीस आपने कमा लिए इन 1 ईयर. ओके, ऐसे आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो. ओके,
सो आगे जाके यही लर्न करके यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड डू दैट. ये हमने रिकॉर्ड किया, जो बिजनेस ने किया वी रिकॉर्डेड दैट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट. और ये जो चीज मैंने आपको बताई है लायबिलिटी और एसेट, इसको कहते हैं बैलेंस शीट. हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म? Yes. This is what is called as a balance sheet. Balance sheet shows the values of assets and liabilities in a business. What are liabilities? Meaning समझ में आया? What are liabilities? Liabilities मतलब anything that the business owes, whether internal or external. अगर मैं in general बात करूं, in general मतलब which I'm talking about liabilities, मतलब which liabilities I'm talking about in general? External. And what do you mean by assets? Assets का definition क्या है? Anything that the business Owns. make changes, it can sell, it should fetch money, it will help in earning future income. Okay, property owned by the business. They are all assets. Comfortable? And always, total of liabilities will be equal to total of Assets. Total of liabilities will be equal to total of assets. Okay. Now, वो assets का ही part है. Last two small terms: tangible assets and intangible assets. What are tangible assets and what are intangible assets? Tangible मतलब वो asset जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो. मुझे बताओ, कैश is it tangible asset or intangible? Tangible. Property, Tangible. furniture, Tangible. ये सबको tangible asset. The assets which have got physical existence, they are called tangible assets. Okay. There are certain assets which do not have physical existence but still have got value. Bitcoin. Intangible assets. Assets. Debtor is a human being. You can see him, touch him, feel him still. Okay. But there are हवा दिखाई देता ही नहीं है, फिर भी asset है. Okay. ऐसा भी asset होता है. I'll give you a small example and rest of the details we'll discuss in the next lecture. One example of intangible asset is patent rights. Have you heard about patent rights? Yes. पेटेंट राइट्स का मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई नया इन्वेंशन किया है ना, तो आप उसको पेटेंट करवा देते हो. से फॉर एग्जांपल किसी ने कोरोना की दवाई बनाई, वो उसको पेटेंट करवा लेगा. अगर मुझे भी वो दवाई खरीद के बेचनी है या बना के बेचनी है तो मैं नहीं कर सकता, इलीगल होगा, क्योंकि पेटेंट उसके पास. तो अगर मुझे वो दवाई खरीद के बेचनी है, उसमें डील करना है, तो मुझे पेटेंट राइट खरीदने पड़ेंगे पहले और उसका पैसा देना पड़ेगा 10-20 लाख रुपए. तो पेटेंट राइट्स आई विल परचेज. तो पेटेंट राइट जैसा फर्नीचर खरीदते हो ना, फर्नीचर आया पैसा गया, मशीन आया पैसा गया, प्रॉपर्टी आई पैसा गया, वैसे पेटेंट आएगा और पैसा जाएगा. तो पेटेंट राइट, कैन यू सी पेटेंट राइट? इट्स जस्ट अ राइट. ओके. और एक डॉक्यूमेंट रहता है, इट्स नो, यू कैन नॉट सी इट बट स्टिल इट हैज गॉट वैल्यू. इन्वेंशन का वैल्यू है, इन्वेंशन का वैल्यू. यू नो इलॉन मस्क ऑफ टेस्ला, he had 400 patents in his name. 400. He gave it free of cost to US government. टेक्नोलॉजी का नया इन्वेंशन का पेटेंट था, नहीं लिया, he gave it free of cost. तो वैसा टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन इंडस्ट्री में पेटेंट होता है. क्यों पेटेंट होता है समझ में? क्योंकि उसने बहुत रिसर्च किया है ना. कोरोना की दवाई में बहुत रिसर्च लगा है. अगर वो पेटेंट नहीं करवाएगा तो दूसरे दिन सब लोग छाप के फॉर्मूला जैसा मार्केट में आएगा, बना के बेच देंगे, उसका तो नुकसान हो गया सब. तो वो गवर्नमेंट में जैसे आप कोई इन्वेंशन करते हो, आप गवर्नमेंट को बताते हो, आपको पेटेंट राइट्स दे देते हैं, फिर कोई दूसरा बंदा उसको कॉपी नहीं कर सकता. करेगा तो उसको पहले पेटेंट खरीदना पड़ेगा. तो पेटेंट इज एन इंटेंजिबल एसेट. ओके. वैसे कॉपीराइट्स होता है. हैव यू हर्ड अबाउट टेलीकास्ट राइट्स? आईपीएल का टेलीकास्ट राइट्स 5 साल का सेट मैच लेता है, कभी स्टार स्पोर्ट्स लेता है. अभी 5 साल का राइट्स आर विद स्टार स्पोर्ट्स फॉर आईपीएल. उसने 3,500 करोड़ दिया है फॉर 5 years फॉर बाइंग द राइट्स. कैन यू सी द टेलीकास्ट राइट्स? जैसे सेट मैक्स के पास सूर्यवंशम का टेलीकास्ट राइट्स है, उसने 15 साल का सूर्यवंशम का टेलीकास्ट राइट्स लेके रखा हुआ है. तो वो क्या किया, राइट्स खरीद के रखा है, वो राइट्स उसका एसेट है. ओके. और अब वो राइट से वो पिक्चर या मैच दिखा के पैसा कमा रहा है. गॉट इट? So you cannot see them, you cannot touch them, but they are still, you can feel them. They are called as intangible assets.
सो कॉपीराइट्स, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, गुडविल, ये सब थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर भी. सो बेसिकली मीनिंग समझ में आया, टैंजिबल और इंटैंजिबल. टैंजिबल मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, इंटैंजिबल मतलब नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. ओके, एंड ऑलवेज टोटल लायबिलिटीज विल बी इक्वल टू व्हाट? Total assets. Total of assets is equal to total of liabilities. Which type of liabilities do we have? External and internal. Internal plus internal. ओके, इंटरनल को क्या बोलते हैं? कैपिटल. Capital. और एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं? लायबिलिटी. तो कहना है से टोटल एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. Yes. एंड कैपिटल के साथ अगर प्रॉफिट आ जाए, जैसे हमारे बिजनेस में आए थे, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेट वर्थ. दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन. इसी को बैलेंस शीट इक्वेशन बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन. ओके, ये जो मैंने आपको बताई, दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन. व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल नेटवर्थ. क्या ये कभी भी इम्बैलेंस हो सकती है? कभी नहीं हो सकती. आप केमिस्ट्री में करते हो ना बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस एंड ऑल, वो इम्बैलेंस होती है. ये कभी लाइफ में इम्बैलेंस नहीं होगी. कभी भी टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, दैट इज इंटरनल प्लस एक्सटर्नल. ये सेम ही रहने वाला है, और इसी के बेसिस पे हम लोग पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं बुक. ओके, तो ऑन दैट नोट वी स्टॉप. अभी आपको घर पे पढ़ना है. ओके, कल आपका लेक्चर नहीं है, परसों है. आई एम कमिंग टू द डाउट, 1 मिनट. आपको क्या पढ़ना है? पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पॉइंट तक सब कुछ रीड करना है आपको. ठीक है, बराबर से पढ़ना है और खुद को समझाना है. रट्टा नहीं, रट्टा मारोगे भूल जाओगे. अंडरस्टैंड द मीनिंग. एग्जाम में जो पूछा जाए ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो, रट्टा नहीं मारना है. और कुछ ना समझ में आए, ओके, तो अभी भी मैं क्लियर कर रहा हूं डाउट्स, अभी पूछ लो. या फिर घर पे मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर है आपके पास. You can call or WhatsApp me and ask me immediately. अच्छा, ये रिकॉर्डिंग भी आपको लिंक आ जाएगी. अगर कुछ मिस आउट हो गया है, लिंक से गो थ्रू करके आप वापस रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, अभी 1 मिनट डाउट क्लियर कर लेते हैं. रुकना, डाउट अपना डाउट नहीं है तो भाग मत जाना. यस लौकिक. I had a simple doubt that why are we counting profits in liabilities? They are not external liabilities, they are internal. I told you na, we are thinking from whose point of view? The business. Business. तो बिजनेस तो खाली पड़ा था. बिजनेस में सबसे पहला ओनर ने पैसा डाला, तो कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. बिजनेस हैज टू पे इट टू ओनर. डोंट थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर, वरना कंफ्यूज हो जाओगे. थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस खाली था, ओनर ने पैसा डाला, ओनर को देना है वो इंटरनल. तो प्रॉफिट किसको देना है? ओनर. दैट्स अ इंटरनल लायबिलिटी. गॉट इट? और बाहर वालों को जो देना है दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी. गॉट इट? ओनर के लिए इट इज लाइक एन एसेट. ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो कैपिटल उसका एसेट है, उसको पैसा आना बाकी है. बट बिजनेस के लिए दैट कैपिटल इज अ लायबिलिटी. वी विल ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. यस मीत. और कौन था दूसरा डाउट? Sir, actually I got disconnected in between, so I'll just send the recording. Yeah. Or just wait after the lecture. All of you, still if you have any doubts, difficulties, you can wait. Otherwise, we meet on Thursday, same time 11 to 1. Revise करके आना, doubts difficulty clear रखना. ठीक है? Bye bye. Shoot. Sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, welcome. डाउट्स वाले रुको. और रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था? आई थिंक प्रीशा. जस्ट वेट. यस तीशा. Yes, sir. Suppose profit की जगह पे loss हुआ, then the total asset won't be equal to the. They will be still equal to total liability. How? See, let us say हमने गुड्स कैश में खरीदा. तो लेट अस से छोटा एग्जांपल लेते हैं. 40 लाख का गुड्स खरीदा कैश में. 40 लाख का गुड्स खरीदा कैश में. तो क्या होगा? यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा 40 लाख, राइट? और कैश चला जाएगा 40 लाख.
तो 28 लाख हो जाएगा कैश में खरीदा है, नॉट ऑन क्रेडिट. एंड देन वी सोल्ड इट, बट बेचते वक्त प्राइस कम हो गया मार्केट में, वी हैड टू सेल इट एट अ लॉस. लेट्स से वी सोल्ड दैट 40 लाख का गुड्स फॉर लेटर्स से 20 लाख. 40 लाख का 20 लाख में सेल करना पड़ा. तो अब क्या होगा, गुड्स चला जाएगा, कैश भी आएगा, लेकिन हाउ मच कैश यू विल गेट? 20 lakh का कैश यू विल गेट, राइट? हाउ मच इज योर लॉस नाउ? 20 lakhs. 20 लाख का लॉस है. देयर वाज ऑलरेडी अ प्रॉफिट ऑफ 18 lakhs, वो तो खत्म. और ऊपर एक्स्ट्रा लॉस कितना? 2 lakhs. 2 लाख का एक्स्ट्रा लॉस, तो प्रॉफिट तो खत्म. अब प्रॉफिट जैसे आप ऐड करते थे कैपिटल में, तो लॉस भी किसको बिलोंग करता है? ओनर. लेकिन लॉस क्या करोगे, ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे कैपिटल? Subtract. तो कैपिटल में से लॉस आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी 2 लाख. तो अभी आपका कैपिटल इज नॉट 1 crore, अभी आपका कैपिटल इज 98 लाख. मतलब बिजनेस ओनर को क्या बोल रहा है, भले ही तूने पैसा डाला, बिजनेस हुआ, लेकिन बिजनेस में लॉस हुआ. नाउ आई वोंट पे यू 1 crore, नाउ आई विल पे यू ओनली 98. सी बिजनेस इज आर्टिफिशियल, एवरीथिंग इज डन बाय द ओनर, सो ओनर नोज इट. उसने 1 crore डाला है, अभी लॉस हो गया है, तो नाउ इज कैपिटल इज ऑन 98 लाख. So he business will pay only 98 lakh to the owner, internal lakh. Yeah, got it. Thank you, sir. Welcome. Yes, Khushi. Sir, I just wanted to ask that we like write liabilities just to keep record, right? Because of leverage and all that we do in assets only. हाँ, बट लाइबिलिटी भी आप रिपे करते हो, जैसे लोन आया और लोन रिपे किया, क्रेडिटर्स आया, क्रेडिटर्स को रिपे किया, वो भी हो रहा है ट्रांजैक्शन. कैपिटल भी प्रॉफिट से बढ़ा घटा, लॉस से चेंजेस हो रहे हैं. तो दोनों का चेंजेस तो हो ही रहा है, नॉट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, दोनों में चेंजेस हो रहा है. Okay, sir. Thank you. Yes, Hansika. No, sir, I was just sitting to Okay. like listen. Ashmi, yeah, no problem. Ashmi. So can you show the interest one again? Interest wala I am yet to explain in the next lecture. That's an expense and income का part. I've just taken assets and liabilities till now. एक्सपेंस इनकम बताऊंगा ना. इंटरेस्ट में मैंने क्या किया, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस. एक्सपेंस का मतलब हर साल जो आप रिकर करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, इंटरेस्ट, टेलीफोन चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस, सैलरीज टू एम्प्लॉइज, ये सब मैंने अभी तक नहीं लिया है, तो ये सब मैं लूंगा, उसके साथ में बताऊंगा. तो इंटरेस्ट में क्या होता है, एनी एक्सपेंस डिक्रीजेस द प्रॉफिट एंड एनी इनकम इंक्रीजेस द प्रॉफिट. तो एक्सपेंस जो भी था ना आपका, इंटरेस्ट 2 लाख, वो आपका प्रॉफिट को कम करेगा. तो प्रॉफिट में से कम किया 2 लाख, और कैश कम हो गया क्योंकि पैसा है. Sir, we had 170 lakhs. So from that you just subtracted and you just did both on both the side, no? So we got 68 lakh. हाँ, दोनों साइड देखो ना. 1 मिनट, ये जो था 170 का भी था, बहुत पहले था. आई थिंक वो क्रेडिटर को पे ऑफ करने से पहले का बात कर रहे थे. Yeah, so you just paid him, after that you got 68, no? हाँ, आफ्टर दैट आई गॉट 68. यस. Okay. 170 में से हमने क्रेडिटर को पे ऑफ किया ना 80 लाख. Yeah. उसके बाद वो कितना हो गया, 90 लाख हो गया कुछ. और 90 लाख के बाद मैंने 2 लाख का इंटरेस्ट पे किया, तो 88 हुआ, और फिर 20 लाख का लोन पे किया, तब 68. Okay, sir. बोलो. These recordings will be sent on Telegram, right? Either Telegram or WhatsApp group, दोनों में से. Okay, so have you sent any Telegram link or yet? No, not yet, not yet. Telegram group अभी तक नहीं बना है. I'll send them. Okay, sir. Thank you. Welcome. Yes, Ninad. Sir, how is OLX a service? It is OLX क्या करता है? OLX है ना, सपोज मैं OLX का ओनर हूँ, तो मेरा काम क्या है, मैंने एक ऐप बनाया है. ओके, आई एम जस्ट कनेक्टिंग द बायर एंड सेलर. मेरा कुछ नहीं, आई एम जस्ट गेटिंग दैट कमीशन फ्रॉम सेलर एंड बायर. आई एम एक्टिंग एज अ मिडलमैन, ब्रोकर. Amazon और फ्लिपकार्ट भी है ना, थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं, मेजॉरिटी दे आर आल्सो सर्विस ओनली. व्हाट डू Amazon एंड फ्लिपकार्ट डू, दे जस्ट मीट द बायर एंड सेलर, मीट द बायर एंड सेलर, और दोनों में से कमीशन मिलता है. जैसे आपको फर्नीचर खरीदना है और हंसिका को फर्नीचर बेचना है, तो मैंने हंसिका और आपका ऐड दिखाया, हंसिका ने देखा, आप दोनों ने आपस में डील की, आपने बेचा, उसने खरीदा, और मेरे को कमीशन मिला.
बायर से नहीं लेता हूँ, मैं सेलर से लेता हूँ फॉर शोइंग द एड। एडवर्टाइजिंग बिजनेस के जैसा है सर्विस। Okay, sir. Yes. So in OLX, they are technically providing service to the seller, right, and not the buyer. Both buyer and seller. Buyer finds na. So why are they They taking don't commission charge from the only buyer. the seller? Sorry, commission only from seller na. Why? If Because they're helping both. if they charge from buyer, who will visit their site? They want business na. So for that, they don't charge from buyers. Yeah. And the more buyers they get, the more commission they'll get from seller, because seller will be more implicated to come to their site, their app. Yeah. Same goes for Amazon, Flipkart. They don't charge commission from you. They charge commission from the seller. Zomato, they charge commission from the hotel wala, not from you guys. Yeah, I understand. Yes, हो गया क्लियर? अच्छा प्रीशा, अभी क्या करना है तुमको, ये रिकॉर्डिंग है ना, प्रोसेस होगा, इट विल टेक सम 10-15 मिनट्स टू प्रोसेस, ओके। देन एक तुम्हारा जूम फोल्डर में फाइल आ जाएगा, ओके, रिकॉर्डिंग का। अब वो फाइल तुमको मुझको ईमेल करना है, तो आई जस्ट व्हाट्सएप यू माय ईमेल आईडी satravishal@gmail.com। इतना बड़ा फाइल जाएगा नहीं, वो फाइल का साइज होगा कम से कम 600-700 MB का, ओके, 600-700 MB का फाइल होगा। तो वो बोलेगा कि सेंड इट एज अ गूगल ड्राइव लिंक, तो उस पे येस पे क्लिक करना, तो गूगल ड्राइव लिंक के जैसा आएगा मेरे को, एंड उधर पूछेगा एक्सेस, अलाउ एक्सेस, तो एक्सेस येस पे क्लिक करना। सो आई विल बी एबल टू सी दैट फाइल। तो मेरे को आ जाएगा ना, फाइल दोगी ना, तो मैं उसको डाउनलोड करके अपलोड करके लिंक भेज दूंगा, तुमको फिर डिलीट कर देना है, तुमको कोई तुम्हारा स्टोरेज वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। So what you need to do, got it? Just send me as a email, Google Drive link, access पे yes करना, and email आने के बाद मैं डाउनलोड करके अपलोड करके सेंड कर दूंगा, तब तुम डिलीट कर। Okay, we'll meet on Thursday. Thank you, sir. Doubts? Yeah. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir.